everyone. I am CA Nilesh Bang. It gives me an immense pleasure to welcome all of you today's insightful webinar on the powerful theme Network is your net worth. There is a beautiful thought by Warren Buffett, sir, who said it's better to hang out with people better than you, pick out associates whose behavior is better than yours, and you will drift into that direction. And that is exactly how networking is all about. In my own journey, I have seen how meaningful connection create real opportunities. I have crossed 25,000 plus LinkedIn followers, and honestly, many of the opportunity and milestone I have achieved with the possible of strong and genuine networking. Because at the end, your network is not just your contacts, it's your capital. Today's session is going to add immense value to all of us by helping us understand how to build, nurture, and leverage our network effectively. Now, without taking much time, it is my privilege to invite our respected chairman, CA Ankur Goyal, sir, to address the gathering and share his valuable insight. Sir, the virtual stage is all yours. Thank you, Nilesh bhai. Thank you so much. Very respected Central Council member, our elder brother Gyan Chand Mishra, sir. Very respected Nirbhik Gandhi ji, Secretary CIRC. Very respected Nitin Bhaiya, our elder brother, Sikasa Chairman Nitin Bhaiya. Very respected Rajiv Bhaiya from Meerut RCM, our elder brother. Very respected Vijayan Jain sir, who is the speaker and also the regional council member from Mumbai. He is a very dynamic and very learned orator. So we also welcome Aditya Srivastava ji, who is the chairman of Bhopal branch. We also welcome all the members who are here to listen to such a dynamic orator, Vijayan Bhai from Mumbai, who is talking on networking. So basically now our profession is wholly dependent upon the networking. Since we are into an era where we are seeing that the सर म्यूट कर दे अगर सुलभ जी प्लीज म्यूट कर दे बाकियों को so at this time, particularly this time where members are seeing that we need to indulge into some different type of practices now, as traditional practices are being getting obsolete day by day. So आज हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ नया करें और हम कुछ डिफरेंटली करें. तो इसके लिए जैसे अपने ज्ञानचंद मिश्रा सर हैं, उन्होंने एमएसएमई को एक बहुत सॉलिड ग्राउंड बनाया, एक बेस बनाया. उसी तरीके से हम लोग को और भी एरियाज नए नए ढूंढने हैं और निकालने हैं जिस पे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं. तो इसी कड़ी में मुझे लगता है नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत अच्छा, मतलब विजयन भाई क्योंकि मुंबई को बिलोंग करते हैं तो वहां पे हर तरीके का बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है. तो मुझे लगता है अगर उनके व्यूज हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, तो शायद हम लोग कुछ नए एवेन्यूज जान पाए, कुछ नए फील्ड समझ पाए और हम लोग उसको इंप्लीमेंट अगर करते हैं तो गाइडेंस विजयन भाई का हम लोग के साथ हमेशा रहेगा. बहुत डायनामिक लीडर है. मेरे को जब भी कोई मदद की जरूरत होती है मैं उनको कॉल करता हूं तो ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प. तो वो हमारे सारे मेंबर्स को उनसे एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और वापस नीलेश भाई को हैंड ओवर करता हूं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू ज्ञान भैया. Thank you so much, CA Ankur Goyal, sir. Now it is a moment of pride to introduce CA Gyanchand Mishra, sir, Central Council member of ICI. Sir is the chairman of Committee on MSME and Startup, vice chairman of Board of Studies of Operation and ICI Corporate Mitra Committee, and sir is the member of various standing and non-standing committee of ICI. Sir has more than 28 years of experience standing to his credit as a established chartered accountant. Over to you, sir. So thank you so much, Anilesh Bhai, very young leader, very respected chairman of the Central India Regional Council, C. Ankur Goyal ji, Secretary of the Central India Regional Council, C. Nirbhik Gandhi ji, Shikasa Chairman, C. Nitin Gupta ji, C. Rajiv Gupta ji, Regional Council member, C. Aditya Srivastava ji, Chairman of Bhopal branch, and of course, at the last but very important, today's speaker, my good friend, CA Vijayan Jain ji,
Regional Council member from Western India Regional Council, and all respected participants. Good afternoon to one and all. Indeed, it's a great privilege and pleasure for me that I have got this opportunity to interact with you on very important topic, that is networking. And well started by Nilesh, a very young moderator of the session, that probably the network is net worth now. So data is new assets, as we say. So the time has come when the professionals need to have more and more interaction, formal and informal both, I am telling you, because until unless you become informal to anyone, probably formal things never comes out. So that is how we have studied one concept of grape wine. Virendra Bhai, you will witness it. The grape wine is very important. Unless you are connect emotionally with someone, probably you are not going to get something. So this is the one thing. The second thing, I said by Ankurji that the modern era practice is going to be era of the aggregation and networking. Institute has also come up with very important committee, aggregation of CA firms committee. And let me tell you, friends, our Honorable Prime Minister is looking that in India, Big Four like firms should emerge. And not only emerge, they should take over the lead in the audit profession and, of course, the consultancy profession. So recently, you must have witnessed in one of a very important article that was published in Economic Times that PMO has directed that few of the listed companies which are in public security and defense, those need to be audited by the indigenous firms. Big four firms are not allowed to get them audited. What is the reason of the same? The reason is data security. So friends, now the time has come when the professionals need to aggregate, need to network, need to take a good leap in the profession, and they need to establish themselves as the bigger firm by which they not only get the work of larger size, but also they are recognized across the world as one of the major consultancy chartered accountants firms. Big Four firms, we people talk. I'm openly, clearly, with full responsibility, I'm speaking that they don't have any certificate of Big Four. By their size, by their volume, by their action, they have become Big Fours. India being the leading market of the professionals, where the world is relying, so many GCCs are coming. In the coming time, you will witness that in India, most of the young, they will be practicing in GCC. I invite you to aggregate, to network, to join your hands, not only for GCC, but for the purpose of growth of the profession. Because if profession is there, we are there. And we are the key stakeholder in the profession. Government, probably, regulatory body are very much eyeing this, that how the chartered accountants profession can aggregate themselves. Ministry of Corporate Affairs is taking so many meetings with the institute from time to time. In last 2.5 months, we have seen more than 3 meetings, and in last year, I think more than a dozen of meetings has been done by Ministry of Corporate Affairs. Just one agenda, how we can network, how we can aggregate. So friends, the time is of chartered accountants. If India becomes a developed country by 2047, the one profession which will get the most benefit, that will be the chartered accountancy profession. So my appeal to each one would be, please listen to the speaker, Virendra Bhai, very carefully, how he guides for the networking. Networking per se, my personal view, is not only the formal networking. My thought is networking starts with emotion. When you meet someone, when you greet someone, when you understand someone, and vice versa, then the networking starts. So I'll not take much time. Our council meeting is going on. I'm just because of Ankur Goyal ji out of the council hall. I just wanted to speak couple of words to you, my dear friends. Just
come along, think over it, and you are going to make big change in the entire professional arena. That would be through networking and aggregation. So my big compliment to the regional council are organizing wonderful webinars in the interest of the members at large. As we are very spread region, so probably it would be more beneficial that virtually chairmen are present everywhere. And my advice would be that we must come up with the pertinent topic as you are doing, and our support wherever needed, we are with you. So thank you, Chairman, Secretary, and whole team of CIRC, all the branches, and Vijender Bhai for giving your precious time to the Central India Regional Council. Thank you very much for patient listening. Thank you so much, sir, for your valuable time and insightful thought. Anand Mahindra sir has once said that the strongest currency in today's world is not just money, but trust and relationship. With this, for welcome address, I would like to invite CA Aditya Srivastav sir, Chairman, Bhopal branch of ICI. Thank you, Nilesh ji. Yoga Karmasu Kaushalam. Excellence in action is yoga. This timeless wisdom reminds us that true success lies not just in knowledge, but in how skillfully we apply it in our actions and relationships. Respected guest of honor, CA Gyanchand Mishra ji, our respected Chairman CIRC Ankur Goyal ji, respected Secretary CIRC CA Nirbhik Gandhi ji, other CIRC members present in the meeting, our esteemed speaker CA Vijayan Jain ji, and our moderator CA Nilesh Bang ji, a very good afternoon to all of you. It is indeed a privilege for me to extend a warm welcome to everyone present in this insightful webinar on the theme, The Power of Networking, Convert Network into Net Worth. At the outset, I would like to express my sincere appreciation to the CIRC for organizing this highly relevant and forward-looking program. My special regards and compliments to our Chairman Sir for his visionary leadership and continuous efforts in creating the impactful platforms for members across the region. I also extend my sincere appreciation to Secretary CIRC Nirbhik Gandhi ji for his dedicated coordination and execution. The seamless organization of such initiatives reflects the strength of the entire CIRC team. I warmly welcome our guest of honor, CA Gyanchand Mishra ji sir. Your presence is truly inspiring and adds immense value to this session. A special welcome to our esteemed speaker, CA Vijayan Jain ji, whose experience and practical insights we are all eager to learn from. Friends, in today's professional environment, success is no longer driven by knowledge alone. It is driven by connections, collaborations, and credibility. Networking, therefore, is not merely about expanding contacts. It is about building trust, creating value, and strengthening relationships over time. As chartered accountants, we are entrusted with the responsibilities that go beyond numbers. We are advisors, guides, and partners in growth. When done right, these relationships naturally evolve into opportunities, growth, and ultimately net worth in its truest sense. I would like to just briefly add कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटवर्किंग के बारे में, तो दो तरह की नेटवर्किंग प्रॉपरली एग्जिस्ट करती है. वन काइंड ऑफ नेटवर्किंग इज द नेटवर्किंग जिसको हम और दोनों तरह की मैं ऐसा कहूंगा कि ग्लैडली आई एम यूजिंग बोथ काइंड ऑफ नेटवर्क्स. फर्स्ट नेटवर्क इज द ऑफिशियल नेटवर्क, जहां पर जैसा कि सर लोग अभी बता करके गए कि आप किस तरह से द न्यूअर एज इज अबाउट जहां पर ऑडिट फर्म्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंडिजीनियस फर्म्स को, एंड बिग फोर से काम निकल के स्मॉलर फर्म्स को काम मिलेगा. तो फ्रेंड्स, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि जहां तक आपकी ज्योग्राफिकल पहुंच नहीं है, ठीक है, उन एरियाज में आप पार्टनर्स ऐड करने की सोचें. जैसे कि मैं अपनी फर्म की बात करूं तो वी आर बेस्ड बेसिकली इन भोपाल, बट देन जहां तक हमारी रीच नहीं थी, बैंगलोर, हैदराबाद, ईस्ट में बात करें तो कोलकाता, हमने वहां पर भी पार्टनर्स ऐड किए. और वो पार्टनर्स आज की डेट में अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं. तो इस तरह से नेटवर्क करके हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और वो
फर्म में ऐड होकर के हमारी फर्म की प्रोफाइल में ऐड कर रहे हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग दैट कैन बी डन. सेकेंड काइंड ऑफ नेटवर्किंग, जो थोड़ी सी अनऑफिशियल काइंड ऑफ नेटवर्किंग है, वो इस तरह से है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ प्रैक्टिस में ही काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. हम लोग कोशिश करते हैं बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सब तरह के असाइनमेंट्स खुद कर लें. इनकम टैक्स भी कर लें, जीएसटी भी कर लें, ऑडिट भी कर लें, किसी का लोन की एप्लीकेशन फाइल करानी है, उसका लोन कराना है वो भी करा दें, एक सब्सिडी की एप्लीकेशन करानी है वो भी करा दें. डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में फ्रेंड्स यही फर्क है, वो लोग एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में जाते हैं और दूसरे काम के लिए वो दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर लेते हैं. हम लोग यही गलती कर जाते. क्यों ना हम अपनी एक कोर स्पेशलाइजेशन बनाएं और अपने साथ फ्रेंड्स को लाएं. जैसे भोपाल लेवल पे मैं कुछ अगर एक पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बैंक्स में लाइसेंसिंग का काम करते हैं, लोन्स का काम करते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो सब्सिडी से रिलेटेड काम करते हैं. तो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उनका कोर एरिया ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स ये अपने पास रखते हुए उनको बाकी काम के लिए दूसरे सीए के पास रेफर कर देता हूं. क्लाइंट कोई दूसरे सीए के पास जाता है लोन की फाइल का कराने के लिए, तो लोन वो उनसे कराता है और बाकी काम के लिए वो उनको मेरे पास रेफर कर देता है. तो अगर हम इस तरह से नेटवर्क्स बिल्ड करें तो खाली एक आदमी की नहीं, मल्टीपल लोगों की ग्रोथ होती है. एंड आई सपोज दिस इज व्हाट आवर स्पीकर मस्ट आल्सो बी ट्राइंग टू टेल यू टुडे. सो ऑन बिहाफ ऑफ द भोपाल ब्रांच, I once again congratulate the CIRC team for this excellent initiative and thank them for giving me the opportunity to be a part of this platform. I wish all of you a very enriching and insightful session. Thank you very much. Over to the coordinators. Thank you so much. Thank you so much, sir. We will also listen to our respected regional council members, CA Nirbhik Gandhi sir, CA Rajiv Gupta sir, and CA Nitin Gupta sir. But as we are short of time, I would like to directly hand over to our guest speaker, CA Vijendra Jain sir. Sir is a regional council member from WIRC, contributing actively to growth and direction of the profession. Over to you, sir. Good evening, one and all. Honorable Chairman of CIRC, impactful, visionary, available for all CIRC branches, CIRC locations, and we first time with the help of Interact in the WOFA recently at Noida, just we shake hand each other and we save the number. He is Ankur Goyal to be elect chairman in the coming months, and I am regional council member from the Kota from Rajasthan. Let's create the impact with each other with the help of network. We are today virtually are there. Kudos to honorable chairman and give the great applause virtually. He is doing selfless for the members, for the student at large. Congratulations to you, chairman, for giving us the opportunity to be virtual to address on this a very need in our topic, that is network is network in this era of this India, because India is the growing country, developing country. I think without the network, we cannot reach. If we see the leadership of our Narendra Modi Prime Minister, with the help of network, with the help of his listening all over the countries, then he developed, they prove ki yes, India is a powerful, India is a developing country. We thankful to you, sir, and Vice Chairman in absentia from Indore, younger brother C. Ankush Jain, Secretary, a person is very humble background, belongs to the Bhilwara, past chairman, the person knows from the share market, a person who's always create the impact to make the wealth of each and everyone. None other than my friend, my regional council CRC colleague, and dynamic secretary of this CRC, none other than CA Nirbhik Gandhi sir. Thank you, sir, for giving the opportunity. And the person who will take care of the financials of the CRC in the absentia, CA Dhaval Kothari ji. Thank you, you as well in absentia. And the person who is the face of the future of the profession. By profession, by leadership, he is handling the student. But in the all office periods, he is having the very seniority in the CIRC of the ICI. None other than our elder brother, CA Nitin Gupta sir, Sikasa chairman. Again, we going forward
the city know from the Bada Talab and Chota Talab, Choti Nadi and Badi Nadi, none other than the very younger, very enthusiastic, the chairman from the Bhopal, none other than Sri Aditya Srivastav ji. Thank you for there, and thank you to be witnessing this virtual screen 27th April 4 to 6 p.m. And the person behind this doing the hard work, coordinating with each and everyone to calling and the Zoom is working or not, the things are in the process or not, and none other than Nilesh Bang, a moderator of the day from the city of the Nagaur, and Absentia, the person, Central Council member, who's the face of the youth, who's the face of the member, is representing strongly MSME for the small medium practitioner. Last year we seen him in his able leadership. He grow the graphical change in the MSME entrepreneurs. Sara Star last year in the Mumbai, he created the history, none other than Honorable Central Council member Gyan Mishra sir in absentia. Thank you each and everyone, Ankur Goyal sir, Secretary sir, Nitin ji, Nilesh ji, everyone for giving us the opportunity. And I believe today we are on the screen, whether we 3, whether we 39, whether we anyone, I believe everyone get the benefit of network is network. So friends, let's start the session. It is a very important session कि network is network. क्या अंकुर जी, मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, आप मुझे बताइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप चेयरमैन है, आज आप बताओ कि हम सीए क्यों बने? लेट्स बी इंटरेक्टिव, जब जितना 5 मिनट आपके पास समय हो, हम सीए क्यों बने? सर जब मैं आर्टिकलशिप मतलब आर्टिकल एक वर्ड में सर हम सीए क्यों बने? एक वर्ड में अगर आपको पूछना था हम सीए क्यों बने? बेसिकली फैसिनेशन। निर्भीक भाई, हम सीए क्यों बने? एक वर्ड में। डिग्निटी इन दिस प्रोफेशन। नहीं सर, हमारे घर वालों ने हमको सीए क्यों बनाया? पैसा कमाने, 1x 10x 3x। क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ऐसा कोर्स है ये, डिग्निटी तो है ही आपके पास, सही है, क्रेडिटेबिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन हम जिस सबसे सस्ता कोर्स इंडिया का और सबसे ज्यादा इनकम पर डे की, अगर आज आप एक डॉक्टर बनते हो, तो कंपाउंडर बनते हो, सर्जन बनते हो, यू डोंट नो आपकी क्या वैल्यूज करेंगे। कि आप इंजीनियर बनते हो तो आप IITian सब नहीं बन सकते, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन वन डे he or she can earn 5,000 rupees to 5 lakh rupees per day, even though 5 crore rupees per day in the FNO, in the capital market, निर्भीक भाई। तो मुझे लगता है कि नेटवर्क के बिना कुछ नहीं होगा, और मैं मानता हूं कि नेटवर्क बहुत जरूरी है। नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन वी बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी हैव टू क्लियर अवर विजन कि हमें करना क्या है। लाइक निर्भीक भाई ने भी सीए किया, हमने भी सीए किया, सबने सीए किया। अब सीए बनने के बाद 4 प्रोफाइल होती है हमारे पास निर्भीक भाई। एक तो या तो हम जॉब कर लें, या तो हम प्रैक्टिस कर लें, या तो जो हमारा फैमिली का बिजनेस है वो हम बिजनेस कर लें, और फोर्थ है कि हम इंस्टीट्यूट की सेवा कर लें। ये भी एक पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, पार्ट ऑफ लाइफ है कि आपको सॉवेनियर इंस्टीट्यूट की सेवा करना चाहिए, ये भी एक प्रोफाइल है। बट यहाँ पे क्या होता है, 15 से 20 साल आपको देना पड़ता है। आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, आपको निस्वार्थ देना पड़ता है। जब 20 इयर्स आप देते हो काउंसिल में, तो 21 इयर्स से उसके फ्रूट्स मिलना शुरू होते हैं। जब आप जॉब में 30 डेज काम करते हो, तो आपको 1 से 5 दिन की 5 तारीख के बीच में, 10 तारीख के बीच में सैलरी आती है। जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो, तो 3 साल से 5 साल के बीच में आपको आपका प्रैक्टिस सेट होता है, और आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हो, आपका जो भी खर्चा करते हो। करेक्ट सिखा था चेयरमैन सर? लेकिन क्या है कि लोगों में प्रैक्टिकलिटी नहीं कि हमें करना क्या है। हम लोग जो लोग बोल रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं कि लोग ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंस्टीट्यूट के अंदर, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, एम्पल ऑफ स्ट्रेटेजी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। सीए से बेस्ट प्रोफेशन, सीए से बेस्ट डिग्निटी, सीए से बेस्ट कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड में। आई कैन डिबेट द हैविंग ऑफ 25 इयर्स एक्सपीरियंस कि डॉक्टर से बेस्ट सीए है, इंजीनियर से बेस्ट सीए, और नेटवर्क से बेस्ट है। तो अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो सबसे पहले होती है हमारी बात कम्युनिकेशन। जैसे अभी प्रैक्टिस का टाइम है, अभी हमारी बात अप्रैल महीने में हम चल रहे हैं, अभी ITRs वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। ITRs के फॉर्म्स भी इस बार तो बहुत एडवांस में लॉन्च हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना आना चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे करना। राइट एग्जाम्पल आपके ITR 1 2 3 4 5 नीलेश भाई सब कुछ आ चुके हैं।
तो आपके स्टाफ के आप पासबुक की एंट्री करवाओ, आप उनको डेटा भेजो, लास्ट ईयर जो डेटा लेट आया है उनको आप कम्युनिकेट करो कि एडवांस में आया है। जो ए कैटेगरी के क्लाइंट है उनकी फीस के लिए आप इन्फॉर्म करो कि बॉस उनको पहले आप डेटा भेजो, उनको पहले आप सर्विस दो। जो 30 सितंबर 25 सितंबर को आपके पास आते हैं और वो आपके सी कैटेगरी की के क्लाइंट है जो आपको फीस भी कम देते हैं और लास्ट मोमेंट पे आते हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म करो कि बॉस आप जून के पहले हमको डेटा भेज दो, सो डेट हम लोग आपका टाइमली आईटीआर फाइल्स कर दे। बिकॉज आपको कैटेगराइजेशन करना भी बहुत जरूरी है कि ए कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी क्या फीस के लिए। तो आज के टॉपिक में हम बहुत मल्टीपल चीजें बात करने वाले हैं, नेटवर्क पे बात करने वाले हैं, फीस डिस्कशन पे बात करने वाले हैं, एमईएफ पे बात करने वाले हैं, यूसीएन पे बात करने वाले हैं, पीयर रिव्यू पे बात करने वाले हैं, कैटेगरी 1 2 3 4 क्या होती है उस पे बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे बात करने वाले हैं, और विटामिन एम पे बात करने वाले हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस में हम अब कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, कैसे हम फाइनेंशियली अपनी फॉर्म को स्ट्रेंथ कर पाए, कैसे अर्न कर पाए, कैसे काम बढ़ा पाए। तो सबसे पहले आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, अगर कोई एडमिन यहाँ पे हमारे पास है तो। स्क्रीन इज ऑडिबल, स्क्रीन दिख रही है? Yes, visible. यस, विजिबल ना? तो पावर ऑफ नेटवर्किंग में मेरा ऐसा मानना है निर्भीक भाई कि सबसे पहले ना, ये मैंने सेशंस लास्ट 2020 से 19 से मैं सेशंस ले रहा हूं। मैंने पहला वर्चुअल सेशन नवसारी में लिया था और आज दूसरा सेशन में सीआरसी में ले रहा हूँ। वर्चुअल सेशन जनरली नेटवर्किंग में इतना मजा नहीं आता जितना हम फेस टू फेस ले पाते हैं। तो अभी हम कम से कम इस पे 40 से 50 सेशन हम ले चुके हैं। नीलेश भाई यहाँ पे पूरे WRC में हम लोग ले चुके हैं। सीआरसी में निर्भीक भाई ने, अंकुर भाई ने, आप सबने पहली बार हमें अपॉर्चुनिटी दी है। Otherwise, we will never come interact with my hometown that belongs from the CRC. तो इतनी जगह हमने सेशंस पे बात करी है, काफी स्टडी सर्कल्स पे, काफी ब्रांचेस में, विच आर द विसिनिटी ऑफ द महाराष्ट्र गोवा कोटा। अगर हम आगे चलते हैं, व्हाट इज नेटवर्क? अब कम्युनिकेशन, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स वर्चुअली 50 मेंबर्स हो गए हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कब फीस लेनी है, कब काम करना है, कब बात करना है, कैसे फीस रिकवर करनी है, कैसे अपनी बात को रखनी है, वेदर यू आर इन जॉब, वेदर यू आर इन प्रैक्टिस। आई डोंट नो ये वर्चुअल है तो कितने लोग जॉब में है, कितने लोग प्रैक्टिस में, आई डोंट नो, बट आई गिविंग द एग्जाम्पल फॉर बोथ ऑफ देम कि अगर आप जॉब में हो, अगर आपने कोई जॉब 10 लाख रुपए के पैकेज पे ज्वाइन करी है, या 15 लाख के पैकेज पे ज्वाइन करी है, या 50 लाख के पैकेज पे ज्वाइन करी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप 10 लाख रुपए ईयरली अर्न कर रहे हो किसी कंपनी से, तो आप जब तक उसको 50 लाख रुपीस का रेवेन्यू लीकेज या 50 लाख का कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को नहीं दोगे, तो मैनेजमेंट आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो डेट्स ए कम्युनिकेशन फ्रॉम अवर सेल्फ। अब सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि बात कैसे करनी है, चीजों को कैसे रखें, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच, आपका अप्रोच कैसे है, कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आप डिलीवर कर रहे हो, लाइक आपका इंडेस है, IFRS है, तो आपको कैसे बात करनी है, आपका अप्रोच डेटा के अंदर, एक्सेप्टेंस। सपोज हम कभी काम करते हैं तो कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, कभी हमसे डेटा गलत फील हो जाता है, कभी हम ड्यू डेट एक्सटेंड कर, हम जो 31 जुलाई डेट रहती है वो हम कभी कभी भूल जाते हैं, कभी 30 सितंबर की डेट होती है तो हमारे स्टाफ से मिस हो जाती है। तो कोई भी चीज को एक्सेप्टेंस करना कि यस प्रोफेशन में है, हम लोगों से गलती होती है, तो हमें उसको एक्सेप्टेंस करना भी जरूर। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका ए कैटेगरी का क्लाइंट है, अगर आप उसको टाइमली सर्विस नहीं दोगे, टाइमली आप उनको ऑडिट करके नहीं दोगे, जो भी असाइनमेंट आप टास्क पे बात कर रहे हो आपने अगर टाइमली नहीं दिया है, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज सेड बाय द सेंट्रल काउंसिल मेंबर ज्ञान मिश्रा सर, इमोशनल। आपका क्लाइंट ना, जैसे आपने नहीं सुना कि ग्राहक आपका देवता है, वैसे क्लाइंट आपका देवता है, क्लाइंट आपका भगवान है। तो आप उसको टाइम मैनेजमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो भी एक्सेप्टेंस है आपने उस पर बात कर ली, डॉक्यूमेंटेशन आपने कर लिया, टाइम मैनेजमेंट आप उसको टाइमली काम करके दे रहे हो, बट कमिटमेंट डिलीवरेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपका कमिटमेंट नहीं है, सेल्फ कमिटमेंट नहीं है, प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, पर्सनल कमिटमेंट नहीं है, तो आप उसको आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। और नेटवर्क के साथ आप नेटवर्क कर रहे हो, फॉर्मल नेटवर्क कर रहे हो, इनफॉर्मल नेटवर्क कर रहे हो, बट आपको उस चीज की सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट नॉलेज में कैसे सर, कि जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब प्रैक्टिस में जैसे निर्भीक भाई है या नीलेश भाई है या कोई भी है, बड़ी फॉर्म है। अब जैसे निर्भीक भाई सेंट्रल काउंसिल रीजनल काउंसिल मेंबर है CRC के, तो इनके पास टीम है पूरी।
ये हर जगह जाते हैं, मार्केट पे सेशन लेते हैं, इंस्टीट्यूट की सेवा करते हैं, बट इनके पास पीछे काम करने वाले लोग हैं। जो जीएसटी की प्रैक्टिस करता है वो जीएसटी वाली टीम है, जो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता है वो इनकम टैक्स की टीम है, जो ऑडिट करता है ऑडिट की टीम है। तो निर्भीक भाई क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से एंगेजमेंट लेटर अपनी बारे में, फॉर्म के बारे में बताते हैं कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हम इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारा काम करने का अप्रोच होगा। फिर वो सामने वाले को समझ में आता है कि यस, ये हमें सर्विस चाहिए, ये इनका काम करने का फर्म का अप्रोच है, ये तरीका है। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर जो ईएल होता है, एंगेजमेंट लेटर, वो साइन होता है कि हम ऐसे ऐसे हमारी फीस आएगी, ऐसे ऐसे हमारा काम होगा। तो कमिटमेंट डिलीवरेबल के साथ सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत जरूरी है। आप अगर सपोज आपके पास काम नहीं आता, आपको सपोज इंडेस आईएफआरएस के लिए आपको अप्रोच किया, तो आप नेटवर्क से भी दे सकते हो। जैसे जैसे हमारे अंकित श्रीवास्तव जी ने बोला, आदित्य जी ने बोला, भोपाल से जो थे, कि भाई आपको सब काम आप नहीं कर सकते, आपके एसोसिएट्स भी होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर है इन हाउस आपके पास काम रहेगा तो ही जरूरी है। करेक्ट नीलेश भाई? तो आपके पास एसोसिएट्स भी है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि एसोसिएट जैसे नीलेश भाई नागौर में बैठे हैं, अब सपोज अगर सपोज उन्होंने बॉम्बे में काम किया हुआ है 5 साल, इंडेस आईएफआरएस में काम किया हुआ है, तो इंडेस आईएफआरएस के तो बादशाह है, उनको काम करना आता है। बट मेरी फर्म में, विजन रीजन की फर्म में बॉम्बे में कोई इंडेस आईएफआरएस करने वाला नहीं है, तो मैं, जो मुझे भी अप्रोच करेगा, मैं इंडेस आईएफआरएस का काम ले लूंगा, मेरी फर्म के नाम पे उनके साथ एंगेजमेंट साइन कर लूंगा, और मैं आउटसोर्स कर दूंगा मैं विद द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। वो मेरे बीच में, नीलेश भाई के बीच में रहेगा कि नीलेश भाई आपको मेरा इंडेस आईएफआरएस करना है। अब नीलेश भाई इंडेस आईएफआरएस 50,000, 20,000, लाख रुपए में नहीं करेंगे। तो जो मेरे को एक्चुअल फीस आ रही है, जैन विजेंद्रन कंपनी को सपोज 10 लाख रुपए की फीस आ रही है, और मैं सोचूं कि नीलेश भाई मेरे लाख रुपए में कर दे, तो नहीं करने वाले। मैं बोलूंगा नीलेश भाई को कि नीलेश भाई मेरे को 10 लाख रुपए की फीस आ रही है, 1 लाख रुपए टीडीएस कटता है, 9 लाख रुपए मेरी फॉर्म में फीस आएगा, नेटवर्किंग मेरा है, लेजनिंग मेरा है, उस क्लाइंट के साथ मैंने काफी बार ग्रीन टी पी है, ब्लैक कॉफी पी है, चाय पी है, 5 साल, 7, 10 साल का रिलेशन है, इमोशनल रिलेशन है, सब रिलेशन है, तो अपन फीस को 50-50 कर लेते। तो 50-50 तक नीलेश भाई एग्री हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कि 5 लाख रुपए उनको आ रहे हैं। अब दो ऑप्शन है नीलेश भाई के पास, 5 लाख रुपए उनको आ रहे हैं, उनको 10 लाख रुपए से कोई मतलब नहीं, उनको बता दिया, ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच में कि भाई आधी आधी फीस होगी, 5 लाख रुपए आ रहे हैं। अब नीलेश भाई की खुद की एक्सपर्टाइज है, तो खुद उसको 4 दिन 5 दिन में डेटा लेकर हफ्ते भर में उसको करके दे देंगे, तो ये नीलेश भाई का एसोसिएट रेवेन्यू हो गया। अब नीलेश भाई के पास सपोज बिजी अपने ऑफिस के काम में, वो मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, तो उनके पास कोई स्टाफ है जो इंडेस आईएफआरएस पे काम करता है, उसके लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग है, और नीलेश भाई को रिव्यू करने में 1 दिन लगेगा, क्योंकि उनको उनकी टीम पे विश्वास है। तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग आई, तो भी नीलेश भाई को 3 लाख रुपए बच गए। तो कैसे बचे? इमोशनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन, और आप हैमरिंग के तरह नेटवर्किंग करते रहो, आप उससे बात करते रहो, बिना फायदे के, बिना कायदे के आप लोगों से बात करते रहो। आपका बात करने के पीछे एजेंडा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं किस लिए बात कर रहा हूँ, मेरा इससे क्या फायदा है। आप बिना फायदे के सामने वाले से बात करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बट उसके लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना आना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपका पीयर है, वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, सब्जेक्ट टॉपिक पे उसकी पकड़ होनी चाहिए। आप जितने भी सीए फॉर्म्स अगर वर्चुअली अवेलेबल है, तो आपके डेटाबेस में 10 आईएफआरएस के प्रैक्टिस करने वाले लोग होने चाहिए, 10 जीएसटी के प्रैक्टिस करने वाले लोग होने चाहिए, 10 इनकम टैक्स पे प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए, 10 अपीलेट ट्रिब्यूनल पे, अपील में, आईटीएटी पे काम करने वाले होने चाहिए, 10 लोग दूसरे बैंकिंग लोन पे काम करने वाले होने चाहिए, 10 लोग आईपीओ पे काम करने वाले होने चाहिए, 10 लोग आई वैल्यूएशन पे काम करने वाले होने चाहिए, 10 लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले होने चाहिए, 10 लोग दुबई में आपका नेटवर्किंग होना चाहिए, 10 लोगों का सिंगापुर, बैरिन, दुबई जो इंटरनल ऑडिट के काम मिलते हैं हमें, वो एक्सपर्ट होने चाहिए, 10 लोग फॉरेन अकाउंटिंग वाले एक्सपर्ट होने चाहिए। आपकी फर्म में आपके पास 100 लोगों का डेटाबेस है, 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग सब्जेक्ट फील्ड के लोग हैं, और आपके वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है, और आपके अच्छे फैमिली फ्रेंड है, एकदम आपके लिए अप्रोचेबल है, आप उसके लिए अप्रोचेबल हो, आप उसको फीस में डिच नहीं करोगे, आप उसको कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट ब्रेक नहीं करोगे। तो आई बिलीव, मैं आपको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको फ्लरिश होने से लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। इट्स माई बैट ऑन यू। मतलब आप मुझसे ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सब चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि आपको मतलब पका पकाया कुछ नहीं मिलेगा, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि मतलब बच्चा नहीं रोता तब तक उसको
मिल्क दूध भी नहीं मिलता उसको, करेक्ट, समथिंग लाइक दिस। तो इट इज वेरी ट्रूथ कि आपको खुद को मांगना पड़ेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे काम चाहिए। आप इतने सेमिनार में जाते हो, आप जितने भी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हो, इतनी जगह आप जाते हो, सेशंस अटेंड करते हो, कभी आपने किसी सीए भाई को बोला, किसी से बात की कि मुझे काम चाहिए? काम मांगोगे तो काम मिलेगा। हम मिलते हैं, हम बात करते हैं, हम बहुत बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर ऐसे काम नहीं मिलता है। तो काम मांगने के लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, इंटरेक्शन विद पीयर, एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडियाज, मीटिंग एंड ग्रीटिंग, दैट इज नेटवर्किंग। अगर हम पहले का डेटा पे बात करें तो 2020 तक के डेटा में बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म ज्यादा है, पार्टनरशिप फर्म कम है। और अगर इस पे बात करते हैं कि पार्टनर्स जो है, अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो 2 पार्टनर वाली फर्म है ना, 13,000 फर्में हैं। और अगर हम 3 से 10 वाली पार्टनर्स की बात करें तो 11,000 फर्में हैं। और 21 से 50 वाली पार्टनर्स की बात करें तो 40 फर्में इंडिया में है। 2020 का डेटा है, उसके बाद अपडेट नहीं किया अभी हमने। और 50 पार्टनर की बात करें तो 2020 में 9 है। मतलब अगर हम बात करें तो अभी भी अगर बड़ी फर्मों की बात करें ना, तो हमारे पास पार्टनर ही नहीं है, मतलब बड़ी फर्म्स है ही नहीं। तो बड़ी फर्म्स अगर नहीं है तो काम कैसे करेंगे? अच्छा, कैटेगरी जो एमईएफ होता है, मल्टीपल एम्पैनलमेंट फॉर्म, जो हम एमईएफ अप्लाई करते हैं, एमईएफ अप्लाई करने के लिए हमें अगर बैंक का काम करना हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम करना हो, कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी करनी है, तो हमें एमईएफ अप्लाई करना होगा। अगर आप फिजिकल अवेलेबल होते तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता, नीलेश भाई अगर आप अवेलेबल हो, कोई अवेलेबल है, तो एमईएफ में जो होता है मिनिमम, मतलब कैटेगरी 4 किसके लिए होती है? अगर नीलेश भाई, अगर आप प्रैक्टिस बैकग्राउंड से अगर आपको पता है तो, अदरवाइज मैं बता देता हूँ कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है, वो एफआरएन होल्ड करता है, वो एमईएफ अप्लाई करता है, तो वो कैटेगरी 4 में आता है। बट अब तो 4 भी मिलना बंद हो गई है, क्योंकि 4 में बैंक एलिजिबल ही नहीं है, बैंक लेती नहीं है। बट आपको अगर आज एमईएफ अप्लाई करोगे तो आपको यूसीएन नंबर आज ही नहीं मिल जाएगा। आपको कंटिन्यू 2 से 3 साल तक एमईएफ को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका यूसीएन जनरेट होगा, और तब जाके आपको कैटेगरी 4 मिलेगी। 2 पार्टनर है, 1 और 2 पार्टनर, मिनिमम 2 पार्टनर है, दोनों एफसीए है, और दोनों की फर्म कहीं भी पार्टनरशिप में नहीं है। मतलब आजकल क्या होता है, जैसे नीलेश भाई ने बोला कि विज्जू भाई आपके साथ पार्टनर बन जाता हूँ, तो वो अपनी फर्म भी चालू रख रहे हैं, मेरी फर्म में भी बन गए, तो मुझे नीलेश भाई का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नीलेश भाई पूरा मेरी में मर्ज होंगे तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो मेरी कैटेगरी 3 हो जाएगी। हम 2 पार्टनर हो गए, क्योंकि पहले मैं प्रोप्राइटर था, नीलेश भाई मेरी फॉर्म में आ गए, तो हमारी कैटेगरी 3 हो जाएगी। अब हमको लगा कि 2 पार्टनर से काम नहीं चल रहा, काम बढ़ रहा है, हमको आगे नेटवर्क बढ़ाना है, तो हम निर्भीक भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, निर्भीक भाई आप हमारे में मर्ज हो जाओ। तो बोलेंगे विज्जू भाई मैं मर्ज नहीं हो सकता। अगर वो मर्ज नहीं होंगे तो वो कैटेगरी हम 2 पे नहीं पहुंचेंगे। अगर उन्होंने पूरी फॉर्म मर्ज कर दी तो निर्भीक भाई भी अगर आ जाते तो हम 3 पार्टनर से हम कैटेगरी 2 हो जाते हैं। तो 4, 3 और 2, तो 2 पार्टनर्स में कैटेगरी मिनिमम 3 पार्टनर चाहिए। और सबसे जो बड़ी फर्म्स होती है, जो बिग 4 है, या बैंक ऑडिट, सेंट्रल स्टेट ऑडिट करती है, या बड़ी ऑडिट करते हैं, रेवेन्यू ऑडिट बैंक्स में, जो भी एमईएफ के एम्पैनलमेंट्स में होता है, वो कैटेगरी 1 है। जितने भी बिग 4 देखोगे आप, टॉप 50 फर्म्स आप इंडिया में देखोगे, तो जहां पे 5 पार्टनर मिनिमम है, जो एफसीए है, फर्म का एग्जिस्टेंस 8 साल का है, तो आप कैटेगरी 1 के अंदर आप आ जाते हो। तो ये आपका पूरा एमईएफ का एम्पेनलमेंट होता है। और एमईएफ का कट ऑफ पहले 1 जुलाई था, अभी एमईएफ का कट ऑफ 1 जनवरी था, अभी एमईएफ का कट ऑफ 30 जून है, जो आने वाला 30 जून है। जितने भी 51 मेंबर्स अगर वर्चुअली सुन रहे हैं, अगर आपको एमईएफ में कोई भी अल्ट्रेशन करना है, कैटेगरी 4 से 3 में जाना है, 3 से 4 में जाना है, 3 से 2 में जाना है, 2 से 1 में जाना है, 1 से 2 में आना है, तो आपको 30 जून के पहले आपके एसएसपी पोर्टल पे अपडेट होना चाहिए। अगर आपके एसएसपी पोर्टल पे 30 जून तक का फॉर्म कार्ड जो डाउनलोड करोगे, अगर वहां नहीं दिखेगा, तो आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वही आपका एमईएफ में जब आप अप्लाई करोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जो एमईएफ आएगा तब वो रहेगा। वी रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ ट्रेजरर सीए धवल कोठारी सर। सो इस तरीके से आपको रहेगा। तो एमईएफ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको एमईएफ पे हमने बात कर ली। स्किल एनरिचमेंट, वेरियस प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन। नीलेश भाई स्क्रीन दिख रही ना? नेगोशिएशन दिख रही है। स्किल्स, क्रेडिट डिजाइन थिंकिंग टेक्निकल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, ब्रांडिंग टेक्नोलॉजी, स्किल फॉर केस, अदर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। तो मतलब हमने एक बात करी कम्युनिकेशन पे। दूसरा मुद्दा होता है कि
लीडरशिप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ लीडरशिप, आज नीलेश भाई और हमको मिले हुए 4 घंटे भी नहीं हुए, हमारी 2 बजे बात हुई थी और अभी हम वर्चुअल 4 बजे बात कर रहे हैं। बट हम नीलेश भाई से ऐसे बात कर रहे हैं कि नीलेश भाई और हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। क्यों हम बात कर रहे हैं कि नीलेश भाई सीए हैं, मेरा नागौर में कोई दोस्त नहीं है, नीलेश भाई से मैं पहली बार कनेक्ट हुआ हूँ। क्या पता ये आज की नेटवर्किंग सेशन से नीलेश भाई हम प्रोफेशनल एसोसिएट हो जाए। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या पता मेंबर्स इसके बाद मुझे सेशन के बाद लगे कभी नागौर में जाऊं कि नीलेश भाई अपन ने एक बार वर्चुअल सेशन डाइस शेयर की थी, यस यस सर अपन ने की थी। या क्या पता कभी नीलेश भाई बॉम्बे आए कोई कॉन्फ्रेंस में, मेरे से बात करे कि बिज्जू भैया अपन ने सेशन किया था, तो मैं उसको बोलूँ चलो चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं। चाय पीते कॉफी पीते पीते जो इनका एक्सपर्ट डोमेन है, जिसपे मेरे पास कभी कोई काम आया हुआ है या पाइपलाइन में चल रहा है कि नीलेश तुम देख लेना यार, अब जब जानते हैं इमोशनली अटैच्ड है, तो फिर तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नेटवर्क में सबसे ज्यादा लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन पे बात करेंगे हम पूरे सेशन में, सेकंड हम लीडरशिप पे बात करेंगे, थर्ड ब्रांडिंग, आपका ब्रांड होना चाहिए। अब एक्चुअली क्या वर्चुअल सेशन में इसलिए नहीं लेता हूँ नीलेश भाई कि मैं बिग फोर के अगेंस्ट बहुत बोलता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम बिग फोर। तो क्या है, बिग फोर का आपने हवा बना रखा है, बिग फोर ले गया, बिग फोर ले गया, बिग फोर नहीं ले गया, बिग फोर को आपने बिग फोर बनाया है। बिग फोर इज द एनआरआई फर्म, इट्स नॉट इंडियन फर्म। आई ऑलवेज प्रमोट द इंडियन थॉट्स, लीडरशिप थॉट्स। आवर गवर्नमेंट इज आल्सो एम्फेसिंग, इंस्टीट्यूट आल्सो एम्फेसिंग टू मेक द इंडियन बिग फोर। इंडियन बिग फोर पे 4-5 साल से गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मोदी जी भी काम कर रहे हैं, हमारे ऑनरेबल टॉर्च बिरेट्स भी काम कर रहे हैं। तो आपने जो ब्रांडिंग है ना, ब्रांडिंग आपको आपका बनाना है। आप रोज बोलते हो बिग फोर बहुत अच्छा है, बिग फोर बहुत अच्छा है। लास्ट 70 साल से हम बिग फोर का अच्छा बोलते हैं, इसलिए बिग फोर अच्छा होता जा रहा है। आप अपना आप को अच्छा बोलिए कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है, हमसे बेस्ट कोई फर्म नहीं है, हमसे बेस्ट जो हम सर्विस देते हैं हमसे बेस्ट कोई नहीं है। आप अपना ब्रांडिंग करिए, अपनी फर्म का ब्रांडिंग करिए। आई डोंट नो, जैसे अभी इंस्टीट्यूट में अपना सीए का लोगो है वो चेंज हो गया है, बोर्ड चेंज हो गया है, विजिटिंग कार्ड्स चेंज हो गए। आई डोंट नो आपने कितना चेंज किया। ब्रांडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे ब्रांड करना। आपका सीए का कप पीने का होना चाहिए, सीए की बोतल आपकी होनी चाहिए, सीए का लोगो आपके विकल्प पे होना चाहिए, आपके ऑफिस में सीए का लोगो होना चाहिए, आपके ऑफिस में पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग होना चाहिए, आपके विजन में एक कागज होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जैसे आज हम लोग इतने लोग यहाँ वर्चुअली अवेलेबल हैं, आप पहले कागज, एक ब्लैंक कागज लेके सेशन के पास जाके देखो कि हम कहाँ खड़े हैं। देखो मैं मुझे टॉपिक पसंद है, 25 साल से मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरा इंस्टीट्यूट में भी यही विजन है कि हम इसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, इस टॉपिक को, इस डोमेन को हमें क्रिएट करें इंडिया लेवल पे। आज हमारे यहाँ 4 से 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10 लाख स्टूडेंट है, 50 से 75 हजार 90 हजार ऐसे मेंबर है जो इंस्टीट्यूट की डिग्री नहीं लेते हैं, इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप उन्होंने रिन्यू नहीं करी हुई है। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, जब हम उनको इम्पैक्ट बताएंगे कि आईसीआई के मेंबर बनने से आपको ये फायदा है, आईसीआई के मेंबर मिलने से आपको ये फायदा मिलता है, तो वो क्यों नहीं वापस अपनी मेंबरशिप रिन्यू करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना काम करना है, क्या काम करना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप खाली पेपर निकालिए, खाली पेपर पे आप रखिए, तो खाली पेपर से आप लिख के देखिए कि आप कहाँ खड़े हो, आप आज कहाँ खड़े हो, आपको कहाँ जाना है, और क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और आपकी फर्म की इनकम क्या है, फर्म की आपकी रेवेन्यू क्या है, आपको प्रैक्टिस में कितने साल हो गए, आपने कितनी रेवेन्यू आपकी ग्रोथ करी है। अगर आपकी रेवेन्यू एवरी ईयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा फ्रेंड्स, तो आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिस के में क्या करोगे, फिर आप जॉब में क्या करोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब में अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस में अगर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस में आप सीए बन के आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और सीए में भी आपका कुछ नहीं, आपका बिजनेस में भी कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि कहाँ हमारी नेटवर्किंग स्किल्स को यूज करना है, कहाँ हमको लीडरशिप की स्किल्स को यूज करना है, कहाँ हमको टेक्नोलॉजी स्किल्स पे यूज करना है, और कहाँ हमको पब्लिक स्पीकिंग पे बात करना है। तो हर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट प्रैक्टिस इन ट्रेंड, अब क्या है करंट ट्रेंड सर कैसे चल रहा है, प्रैक्टिस इन इंडिविजुअल नेम, हर आदमी को अपने नाम से बहुत प्यार है। बट मैं मानता हूं कि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांड इंपॉर्टेंट। आज सपोज मैं हूं, मेरी फर्म को आप लोग जानते भी नहीं हो, मतलब अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो आप मेरी फर्म को जानते हो, अदरवाइज अगर मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मैं बात करूं,
तो हम लोग एक दूसरे को सबको जानते हैं हम, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस इन इंडिविजुअल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस इज सोल प्रोप्राइटर फॉर्म। अब जितने भी लोग छोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक डिस्टर्बेंस इज फ्रॉम माय साइड, क्या एनी डिस्टर्बेंस कमिंग, जस्ट होल्ड ऑन। Yeah, so we are there. So दिख रहा है नीलेश भाई? So Sir, visible. yes, so practice in individual name, practice a sole proprietor firm. Practice is partnership, limited partnership firm, merger of two or more firm, networking firm. तो करंट ट्रेंड क्या चल रहा है नीलेश भाई? हर आदमी को अपने नाम से प्यार है, अपनी फर्म का नाम चेंज नहीं करना है, या पार्टनरशिप एलएलपी में उसको जाना नहीं है, मर्जर टू मोर फर्म्स का। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बड़ी फर्म हो, आपकी फर्म में 5 या 7 10 पार्टनर है, तो सबसे पहले आपकी पार्टनरशिप फर्म को आपको एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहिए। क्योंकि एलएलपी से लिमिटेड लाइबिलिटी एक तो आपकी हो जाती है, कल से कुछ नाफरा का इशू आता है, कभी कुछ इशू आता है, तो जो एक्स पार्टनर ने काम किया है, एक्स पार्टनर से बोनाफाइडली हुआ है कुछ भी, नॉट मालाफाइडली, तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में उसी एक्स पार्टनर तक लाइबिलिटी आती है। अगर आप एक्स पार्टनर, अगर आपकी जो फर्म है वो पार्टनरशिप में है, एलएलपी नहीं है, तो आपकी फर्म की ब्रांडिंग पे भी, आपकी फर्म पे भी इम्पैक्ट आता है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है। बट एलएलपी में फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपकी फर्म पे कम आता है, आप पे इंडिविजुअल पार्टनर पे ज्यादा आता है। पार्टनरशिप के केस में, एलएलपी के केस में कम आता है। तो थोड़ा सा मर्जर ऑफ टू और मोर फर्म्स, अगर सपोज मेरी फर्म 2010 की है और नीलेश भाई की फर्म 1985 की है, और नीलेश भाई मेरी में मर्ज होते हैं और नाम मेरा ही ब्रांड है, तो मेरी फर्म 85 की लीगेसी हो जाएगी। मैं नीलेश भाई की 1985 की फर्म है, मेरी 2010 की फर्म है, मैं नीलेश भाई की फर्म में मर्ज होता हूं, तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा, नीलेश भाई का लीगेसी कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट सब जस्ट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका नेटवर्क ऑफ द फर्म। Majority CA firms are small size firm. All large number of firms have been confined practice to audit and taxation. Many firms have audit allotted through ICI PDC, हमने बात किया, और members have attachment with their firm name and do not want to merge the network due to fear of loss in identity. अब करंट ट्रेंड नीलेश भाई क्या चल रहा है? क्लाइंट जब बड़ा बनता है ना, और उसको स्विच ओवर करना पड़ता है। अगर आप नेटवर्क से अपना आपको बड़ा नहीं करोगे, अपना आपको अपग्रेड नहीं करोगे, अपना नॉलेज कंटेंट नहीं बढ़ाओगे, आपके पास डोमेन्स इंक्रीज नहीं करोगे, जैसे आईपीओ, एसएमई आईपीओ, अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड नहीं है और आपके पास पब्लिक लिमिटेड कब नहीं है, आपको क्योंकि ज्यादा काम करते हैं तो फीस भी हमें कम मिलती है, तो हम लोग छोटे क्लाइंट्स रखते हैं, प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं। अब क्लाइंट को किसी ने नेटवर्क में किसी से मिले निर्भीक भाई से, तो निर्भीक भाई ने बोला कि भाई मेरा मर्चेंट बैंकर दोस्त है, आपका 200 करोड़ का टर्नओवर है, बट आपकी तो फर्म पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप है। तो नितिन भाई ने बोला कि मेरा मर्चेंट बैंकर दोस्त है नीलेश, और नितिन भाई लोग सब मिलके उसको पट्टी पढ़ा दिया कि भाई इसका एसएमई आईपीओ आ सकता है। बट एसएमई आईपीओ आ नहीं सकता क्योंकि वो फर्म प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है। तो ये क्या होगा, या तो आपके पास आएगा सर इसको प्राइवेट लिमिटेड करो, तो आप बोलोगे नहीं हम तो नहीं करते, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो दे टेंड्स टू स्विच ओवर द लार्जर फर्म। तो फर्म दैट हैव वेंचर्ड इन न्यू एरियाज ऑफ द प्रैक्टिस, दैट हैव फाउंड सक्सेस, फर्म दैट हैव डेवलप्ड एक्सपर्टाइज, स्पेशलाइजेशन हैव प्रोस्पेरेड। आपका स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी फर्म में पूरा बिजनेस डेवलपमेंट में देखता हूँ, तो और पार्टनर्स जो हमारे पार्टनर्स से सारा काम करते हैं, तो आपका फर्म स्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि एक जना काम लाने वाला हो, एक जना काम एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके नीचे उस एरिया पे कौन काम कर रहा है, कौन मैनेजर है, कौन स्टाफ है। आपका स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपकी फर्म में बार बार स्टाफ जाते हैं, बार बार टीम जाती है, तो वो क्लाइंट्स के सामने एक अच्छा रेपुटेशन नहीं जाता है। तो आपके क्लाइंट्स भी कंफर्म अगर चाहिए, आपको एक ही क्लाइंट हमेशा चाहिए, तो आपका स्टाफ भी आपका रहना परमानेंट बहुत जरूरी है।
नेटवर्किंग जर्नी कैसी होनी चाहिए? नो बिफोर यू गो, आप जिससे मिलने जा रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, उसका मूड कैसा है, उसका टेम्पटेशन कैसा है. Target your connections. Who are you trying to connect with? Where to network? How you are going the way? Define your objective. Once you people you want to adjust where to become the value provider. Planning time management, set priorities, personal, professional commitment, our social commitment, meet and greet and intention. Make the good eye contact, be humble, be genuine, take follow-up, action taken report जिस पे आप काम कर रहे हो. तो मतलब नेटवर्किंग में आपको देखने में बहुत सिंपल लगेंगे, बट आपका अप्रोच, आपका ओरा, मतलब एवरी टाइम यू आर ऑब्जर्विंग, लाइक आप कैसे जाते हो ना, आप किसी सेंसिटिव जगह जाते हो, कि आप कैमरे की कैद में हो, तो हर चीज ओरा फ्रेंड्स मेंबर्स आप नोट किया जाता है. आपका अप्रोच, आपका नॉलेज, आपका डिलीवरेबल, आपके एंगेजमेंट्स, आपके कमिटमेंट, आपका एवरीथिंग, आपका ड्रेस कोड, आपका कनेक्ट, आपका इंटेंशन, everything will be the part of the network, and that all your act, all your routine in professional capacity will be impact your financial revenue, increase or decrease. क्योंकि आपके ओरा से ही आपकी फीस बढ़ेगी. आपकी नॉलेज, आप देखो हर चीज तो आपको नहीं आती. नीलेश भाई बोलेंगे मुझे ऑडिट भी आता, टैक्स भी आता, जीएसटी भी आता, सब नहीं आता. नीलेश भाई अगर जीएसटी पे काम करे तो उनको जीएसटी की बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि भैया मुझे जीएसटी आता है, मेरे पार्टनर्स और सब लोग ये एरिया देखते हैं, इस एरिया पे काम करते हैं. तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से. अब अगर नेटवर्किंग जो सीए की होती है उसको जरूरत है वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी, बेटर रेट्स फॉर प्रोफेशनल्स, बेटर सर्विसेज टू द क्लाइंट. एडवांटेज नेटवर्क के, प्रोफेशनली अपडेट रहोगे आप, इमीडिएट रेफरेंस आपको मिल जाएगा, मल्टी फैसेट नॉलेज रहेगी आप लोग के पास, थ्रो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस रहेगा आपका, कॉन्फिडेंस टू हैंडल द न्यू असाइनमेंट. अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप नए हैंडल कर सकते हैं असाइनमेंट. अगर आपका नेटवर्क ही नहीं है, अगर आपकी दोस्ती नहीं है, आपका किसी से कनेक्ट ही नहीं है, तो आप नया काम ले नहीं सकते. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेंबर्स बोलते हैं हमारे पास काम नहीं है. काम इसलिए नहीं है मेंबर्स कि हम अपग्रेड ही नहीं हो रहे, हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में लगे हुए हैं. हमको जीएसटी करना है, इनकम टैक्स रिटर्न करना है और आईटीआर फाइलिंग करना है. मुझे लगता है कि ये अब आपको एक डोमेन, किसी जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय है उसको संभला देना चाहिए कि 10-20-25 लाख की प्रैक्टिस तुम संभालो, इसको तुम करो, मैं नए डोमेन तैयार करता हूँ. वैल्यूएशन से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फॉरेन अकाउंटिंग है, लॉट ऑफ आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है, लोन है, प्राइवेट फंडिंग है, इक्विटी फंडिंग है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ कि आपको क्या है. तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. स्टेपिंग स्टोन इनटू प्रोफेशनल पार्टनरशिप एसोसिएशंस. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग ऐसा नहीं कि सामने वाले को पसंद ही नहीं. नीलेश भाई को सुबह सुबह 6 बजे आप फोन करके नेटवर्किंग करोगे तो बोलेंगे सर सोने दो, अभी सोने का टाइम है, नेटवर्किंग करने का टाइम नहीं है. हर चीज का टाइम होता है. आप संडे को नेटवर्किंग करोगे इनफॉर्मल वे में करोगे, आप मंडे को ऑफिस में करोगे तो फॉर्मल वे में करोगे. आप नीलेश भाई से संडे को बात करोगे तो अलग टर्म में बात करेंगे, दोस्ती कैपेसिटी में बात करेंगे. आप उनसे बाहर मिलोगे गार्डन में, कैसे हो विज्जू भाई, चलो अपन बैट बॉल खेलते हैं, चलो अपन पिकल बॉल खेलते हैं, चलो अपन पानी पूरी खाते हैं. बट नीलेश भाई जब ऑफिस में मिलेंगे सुबह 11 बजे अपने को, तो अलग तरीके से बात करेंगे, आइए सर बैठिए सर क्या चल रहा है, क्योंकि वो ऑफिस के अंदर है. तो आपका पोलाइटनेस, पर्सनल स्पेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको एक जैसा रहना है. आपको सामने वाले के हिसाब से चलना, जो दिखता है फ्रेंड्स वही बिकता है. सामने वाले के हिसाब से आपको चलना अगर आपको बड़ा बनना है तो. और मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 5 साल आपको लाइफ के देने. अगर आपने 5 साल 24 घंटे में से 12 घंटे अगर काम करते हो और आपका फोकस है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, आपको दुनिया में कोई पीछे नहीं कर सकता. सबसे पहले अपनी गलती मानो रोज सुबह शाम, कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है, मुझे हर दिन सीखना है, हर दिन आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा करना है. बट जो भी करना है एथिकल करना है, जो मैं बोलूं वो करूं. मैं नहीं बोल रहा कि आईसीआई के एथिक्स की वाली चीजों के, जो आप बोल रहे हो, जो कमिटमेंट दे रहे हो आप क्लाइंट को, अपने कमिटमेंट प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो आप उसको पूरा करो. ऐसा नहीं कि हो जाएगा. बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, पिच मॉड्यूलेशन, कब तेज बोलना है टीम को, कब क्लाइंट को तेज बोलना है, कब क्लाइंट का तेज सुनना है. जैसे फीस है, अब जैसे आप हमेशा क्लाइंट से फीस मांगोगे तो फीस पॉसिबल नहीं है. आपको सबसे पहले अगर हम फीस पे बात करें तो कभी भी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सबमिशन है कि हमारे ऑफिस में एनओसी वाले क्लाइंट होने ही नहीं चाहिए. अगर कोई सीए भाई है, वो क्लाइंट अगर उसको 10 साल बाद छोड़ के आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है, फीस कम, वो फीस ज्यादा चार्ज कर रहे थे और अभी उसको कम वाले सीए चाहिए,
तो हमें ऐसे एनओसी हमारे ऑफिस में रखने ही नहीं चाहिए। हमें एज ए प्रोफेशनल कर्टेसी में उसको फोन करना चाहिए कि भाई ये सीए मेरे पास आया है, ये मेरे पास क्लाइंट आया है, ये आपका क्लाइंट था, ये क्यों छोड़ रहे हो आप, ये आपको क्यों छोड़ रहा है। अगर वो बंदा जो क्लाइंट है, एक्स क्लाइंट है, वाई क्लाइंट है, वो किसी सीए को फीस के कारण छोड़ रहा है और 10 साल से उनका सीए था, तो वो आपको भी एक दिन छोड़ जाएगा। तो आई बिलीव कि फीस पे आपको बहुत क्लियरिटी देना चाहिए कि आप किसी का ऑडिट ना लो। आप किसी का ऑडिट लो तो उसकी फीस क्लियर करो। जैसे आपको पता है कि अगर आप डिसिप्लिनरी में अगर आप केस करते हो और आपका ऑडिट फीस पेंडिंग है, तो आपकी जो पीएनएल में ऑडिट फीस दिख रही बैलेंस शीट में, इतनी ही आप रिस्पॉन्सिबल। सपोज आपकी ऑडिट फीस 50,000 रुपए है और उस क्लाइंट का आपने कोई और भी काम किया था, आई डोंट नो, तो 6 लाख रुपए और खड़े हुए हैं आपके पेबल में, बट ऑडिट फीस में जो टैब है वो 50,000 ही लिखा हुआ है, तो आप 50,000 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो क्या होता है कि आप ऑडिट फीस को सही जगह लिखो। अगर आपका 5 लाख है तो आप 5 लाख ही लिखो। अदरवाइज आपकी कंसल्टेंसी फीस के नाम पे चीजें जो भी है, वो फीस के लिए इंस्टीट्यूट या डिसिप्लिनरी कमेटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपको हर चीज फीस के बारे में बहुत अच्छे से ओपन रहना चाहिए कि हमें कितनी फीस लेनी है, क्या फीस लेनी है। अगर आप ज्यादा फीस नहीं लोगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अभी क्या होता है कि हम कोई भी क्लाइंट को लेने के लिए, काम लेने के लिए, हम 1,200 रुपए में जीएसटीआर फाइलिंग, 2,000 रुपए में आईटीआर फाइलिंग। आई थिंक अगर हमें बड़ा करना, अब आप बोलोगे सर आपके लिए बोलना आसान है, हम जिस लोकेशन पे रहते हैं वहां पे काम नहीं मिलता। सब मिलता है सर। कंफर्ट जोन से आइए आप, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए, आप लोगों से नेटवर्क बनाइए। अगर आप छोटी जगह रहते हो जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, काम नहीं है, और आपके क्षेत्र में 10 ही सीए है, तो 10 सीए अगर है तो आप बड़े शहर में बाजू में कहीं भी जुड़ोगे तो वहां से आपको काम मिल सकता है। आपको एसोसिएट बनना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, सामने वाले का ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको काम देगा। क्योंकि सामने वाले को डर ये होता है नीलेश भाई कि काम लेके चले जाता है सामने वाला। अगर अगर हम लोग कोई एंगेजमेंट साइन नहीं करेंगे, एमओयू साइन नहीं करेंगे, तो सामने वाला काम लेके चला जाता है। इसलिए कोई भी सीए भाई दूसरे सीए भाई से काम शेयर नहीं करता है। तो इसके लिए आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है तो आप उसको कर सकते हो। तो बी फॉर्मल इनफॉर्मल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ओपन फॉर फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे अभी मैं आपसे सेशन ले रहा हूँ, वर्चुअल सेशन वैसे नेटवर्किंग पे लिया नहीं जाता। टेक्निकल टॉपिक पे फिर भी ठीक है कि ये टेक्निकल टॉपिक आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जितना फिजिकली आप इंटरेक्ट करोगे, जितने क्वेश्चंस आप लोगे, तो ये ज्यादा अच्छे से होता है। बट चेयरमैन सर ने बोला कि नहीं सर, लेना है तो लेना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर का हुक्म अपने लिए रहता है, लेकिन जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप चीजों को नहीं कर पाओगे। तो नेटवर्किंग में ओपन फीडबैक रहना चाहिए। जैसे आप सेशन खत्म होगा, आप बोलोगे सर हमको मजा नहीं आया, सर आपने जो बोला था ये हमने बराबर नहीं बोला, तो यस आई हैव टू रिप्लाई योर आंसर। यस सर, मैंने इस कंटेस्ट में बोला था, मैंने इस कंटेस्ट में नहीं बोला था। मे बी कुछ अच्छे पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव फीडबैक भी मिलेंगे। वैसे प्रैक्टिस में दोनों चीजें हम लोगों को मिलती है, तो हमें ओपन रहना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट योर सेल्फ, लाइक कोई ब्रिजवासी कचौड़ी वाला या अग्रवाल कचौड़ी वाला या वोटेवर, ऐसे नहीं है कि नागौर के पापड़ या नागौर की मंगोड़ी हम खा लें और बेच दें। वी आर द प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमें अपना ब्रांड खुद को बनाना है। हम जहाँ खड़े हुए वहीं पे आदमी हमसे मिलना चाहे, यस बॉस, इस आदमी से हमको मिलना है। आई डोंट नो वेदर यू इन विच एज, जैसे नीलेश भाई आज आप अंडर 40 हो, तो 10 साल अगर आप, या अंडर 45, आई डोंट नो भाई, तो अब यंग लग रहे हो, बट आप इतना ओरा बनाओ 50 साल में, 10 साल में, कि वेन यू रीच एट द एज ऑफ द 50, कि हिंदुस्तान का हर आदमी आपसे मिलने की कोशिश करेगी, यार बॉस एक बार नीलेश बंग से मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए, एक बार नीलेश बंग से 5 मिनट मुझे बात हो जाए कि नीलेश भाई ये वेल्थ कैसे बना, ये वेल्थ कैसे बनाई आपने, ये जर्नी जीरो से हीरो की कैसे हुई है। फ्रेंड्स, सीए की हर आदमी को, आप मोतीलाल ओसवाल जी को देखोगे तो आज उनकी जर्नी कैसी है, आज बिलीनियर कैसे बने, नेटवर्क से बने। आरबीजी हॉस्टल में उनको एक अच्छा दोस्त मिल गया, रामदेव अग्रवाल, दोनों अच्छे साथ में पढ़ते थे आरबीजी हॉस्टल में। मोतीलाल जी का नेटवर्किंग अच्छा था, उनका पीआर अच्छा था, और हमारे रामदेव जी अग्रवाल बैलेंस शीट को समझने में एकदम एकदम होशियार है, उनको नंबर समझ में आते हैं। तो आपको पार्टनर भी नेटवर्क में ऐसा ढूंढना है कि अगर सभी नेटवर्किंग वाले ढूंढ लोगे तो काम कौन लाएगा। एक जना काम लाने वाला, एक जना फीस को समझने वाला, एक जना बिजनेस डेवलप करने वाला। तो आपको ओपन फॉर फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के लिए ओपन रहना चाहिए। नेटवर्क सेल करने के लिए नहीं है अपना आपको, अपने ओपन माइंडेड। रीजन फॉर लेस नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग कम क्यों है, जैसे हम लोग अभी जुड़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नेटवर्किंग कम क्यों है। सो नेटवर्किंग अमंग्स द इंडियन सीएफ रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे
तो आईसीआई में 2020 में कोविड के आसपास एक आया था कि नेटवर्किंग बैनर में आप काम कर सकते हो। जैसे नीलेश भाई की फर्म, अंकुर भाई की फर्म, नितिन भाई की फर्म, आदित्य भाई की फर्म, हम सबकी फर्म, सपोज हमें नेटवर्किंग बैनर में आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो हमने एक एक एब्रीवेशन का फर्म का नाम तैयार कर लिया, लाइक नेटवर्क या वट एवर, कोई भी नाम हमने फाइनल कर लिया। तो हम सबकी प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म अलग अलग ही है, पर हमने एक नेटवर्क रजिस्टर्ड कर लिया। उस नेटवर्क के अंडर में हम लोग का रजिस्टर्ड हो गया सारी फर्में। तो इन शॉर्ट एक रूम, एक हॉल है या एक मल्टी है, एक मल्टी में हम सबके सीए के ऑफिस अलग अलग है, और बट हमारा ब्रांड है एक ही। तो वह इंस्टीट्यूट के नेटवर्किंग बैनर पे आप इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, देखिए, बट कोई रिकॉग्नाइज नहीं है इसके अलावा। इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है, क्या इसका लेजिस्लेशन है, क्या इसको रजिस्टर्ड करना है, कैसे करना है। और असाइनमेंट भी अपने नाम से अपन ले नहीं सकते, इंस्टीट्यूट अपने को अलाउ नहीं करता है। तो जितना आप इनफॉर्मल, जो ज्ञान मिश्रा सर ने बोला ना, जितना इनफॉर्मल इमोशनल आप लोगों से जुड़ोगे, तब जाके आपका नेटवर्क क्रिएट होगा। अगर आप हर चीज पेपर पे लेके आओगे, तो हर चीज पेपर से नहीं होती, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आप ऑफलाइन मुझसे पूछो सर इसका नेटवर्क का कोई एग्रीमेंट का फॉर्मेट होता है क्या, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप जितना इमोशनल जुड़ोगे, जितना लोगों से जुड़ोगे, जितना लोगों से मिलोगे, लेकिन सही लोगों से मिलना, सही लोगों से बातचीत करना, सही लोगों से अपने बारे में टेक्निकल, अपनी फॉर्म के बारे में बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो, और अपना आपको टाइमली अपडेट कि इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, बजट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, प्रोफेशन में क्या चल रहा है। तो आपको हर तरीके से अपडेट रहना पड़ेगा। और फियर होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स बाकी, अपोजिट पर्सन लाइक अदर मूड, टेम्परेचर, टाइम अवेलेबिलिटी, रिएक्शन, नेटवर्किंग, रॉन्ग पर्सन अफेक्ट, टैगलाइन, रेपुटेशंस। कभी कभी सामने वाले को, मतलब कभी कभी हर आदमी को नेटवर्किंग पसंद नहीं होती है। आई डोंट नो, मतलब नेटवर्किंग जिसको पसंद होती है वो काफी फ्लरिश कर रहा है। अगर हम 4 लाख सीए में बात करें तो 1,75,000 या 1.5 लाख प्रैक्टिसिंग सीए है। 1.5 लाख प्रैक्टिसिंग सीए में हम बात करें तो 20,000 सीए ही ऐसे लोग हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे फ्लरिश? उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास ब्रांडिंग है, उनके पास लीडरशिप है, उनके पास लीगेसी है, उनके पास कम्युनिकेशन है, उनके पास नेटवर्किंग। दैट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस आर द विटामिन एम, द एम फॉर मनी। तो जब 1,75,000 प्रैक्टिसिंग सीए में 20,000 40,000 के पास है, तो हमारे पास क्यों नहीं? अभी बैंक ऑडिट अभी गया है, अप्रैल में अभी गया है। अभी सबके क्वेश्चंस रहते हैं हम लोगों को, सर हमको बैंक ऑडिट नहीं मिलता है। आप नेटवर्किंग करिए। आप नेटवर्किंग कैसे करेंगे बैंक ऑडिट में जाके? आप किसी सीएफओ, जो बैंक का सीएफओ है, जो ऑडिट सेक्शन है, वहां जाके आप मिलिए। आपको मिलने के लिए कोई मना करेगा क्या? बट नॉट फ्रॉम द बैंक ऑडिट टाइम। आप साल भर पहले मिलना शुरू करिए, हर 2 महीने में जाइए, वहां पे विजिट करिए, अपनी फर्म का प्रोफाइल दीजिए। जो वहाँ का ऑडिट सेक्शन का हेड है, सीएफओ है, सीओ है, जोनल के अंदर, रीजनल के अंदर, वहां जाके अपनी प्रोफाइल दीजिए। उसका इनकम टैक्स रिटर्न फ्री में फाइल करिए, उसको एडवाइजरी दीजिए, उससे दोस्ती करिए, उसको अपनी फर्म के बारे में बताइए, तो आपको बैंक ऑडिट मिलेगा। अदरवाइज जो बाय रोटेशन बैंक ऑडिट मिलता है सिस्टम से, वो तो मिल ही रहा है। तो कई मेंबर्स मिलते हैं कि आपको बैंक ऑडिट मिल जाता है, हमको नहीं मिलता। तो फर्क पड़ता है ना सर। अगर नीलेश भाई यूनियन बैंक में 2 साल 3 साल से जा रहे हैं, जब सीए नहीं बने थे, स्टूडेंट नहीं बने, तब से वहां जा रहे हैं, उनका अकाउंट था यूनियन बैंक के अंदर, और यूनियन बैंक में सीए बनने के बाद भी जाके ब्रांच मैनेजर को मिठाई खिला के लाए कि सर आपका अकाउंट था, मुझे हमेशा आप कैश विड्रॉ दे देते थे मेरे पेरेंट्स को। और वो ब्रांच मैनेजर जाके डीजीएम बन गया, जीएम बन गया, और उसने रिकमेंड कर दिया कि नीलेश भाई अपना छोटा भाई है, उसको मैं 15 साल 10 साल से जानता हूँ, एक उसको बैंक ऑडिट का अलॉट कर देना, या उसको कंकरेंट ऑडिट दे देना। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए काफी एग्जाम्पल है, आपको बस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए? अब आपके फॉर्मल अरेंजमेंट्स भी होते हैं, इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स भी होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग कमिटी, मैनेजिंग पार्टनर, जैसे हमारी सब फॉर्म में सबसे नीलेश भाई छोटे हैं, तो उनको सबका मुखिया बना दो, जो नीलेश भाई बोलेंगे हम वही करेंगे। नीलेश भाई के पास फाइनल अथॉरिटी, हम सबका डिस्प्यूट होगा तो नीलेश भाई करेंगे। हम उसमें किट्टी डालेंगे, हम उसमें फंड डालेंगे, क्योंकि देखो सीपी, अभी मैं सीपी की बात करता हूँ, आज का प्रोग्राम सीपी में नहीं है। आप सीआरसी, सीआरसी सेंट्रल सेंट्रल रीजन से हो आप लोग सब, जितने भी लोग आप स्क्रीन पे हो। आप सीपी वहां क्यों करते हो? सॉरी मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ, मतलब लीडर्स। आप सीपी वहां करो जहां आपको पार्टनरशिप डेवलप करनी है। आप सीपी प्रोग्राम वहां अटेंड करो जहां जिस लोकेशन पे आपको धंधा बढ़ाना है।
आप CPRRC सब रीजनल कॉन्फ्रेंस जो होती है इंस्टीट्यूट की ऑल ओवर इंडिया, आप वहां ज्वाइन करो जहां आपको पार्टनर की जरूरत है। आप वहां ज्वाइन करो जहां आपको काम धंधा डेवलप करना है। आप वहां ज्वाइन करो जहां प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। तो आपका CP भी हो जाएगा, आपका नेटवर्क भी हो जाएगा। और सपोज आप 4 पार्टनर ऑलरेडी हो और आपका फॉर एग्जांपल कोटा में कोई प्रेजेंस नहीं है, आपको कोटा में DCM फैक्ट्री, कोटा स्टोन, काफी अपॉर्चुनिटी है वहां पे काम लेना है, तो आप कोटा जाके रुकिए। कोटा में इतने प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, वो अटेंड करिए। उसके बाद आप वहां पे काम मिलेगा आपको। बट 2-3 विजिट में कुछ नहीं होगा। आपको 2-3 विजिट में CP प्रोग्राम करने पड़ेंगे, वहां के चेयरमैन से दोस्ती करनी पड़ेगी, वहां के लोगों से जान पहचान करनी पड़ेगी। जैसे आपको दिलीप बिल्डकॉन भोपाल में है, अभी हमारे आदित्य श्रीवास्तव जी भोपाल के चेयरमैन है। अब दिलीप बिल्डकॉन का ऑफिस बॉम्बे में भी है, दिलीप बिल्डकॉन का ऑफिस भोपाल में भी है। अब भोपाल आप जाओगे तो दिलीप बिल्डकॉन में ऐसे एंट्री नहीं हो जाएगी। पहले आपको आदित्य श्रीवास्तव जी से या पास्ट चेयरमैन से दोस्ती करनी पड़ेगी, वो आपका दोस्त होना चाहिए। फिर आपको दिलीप बिल्डकॉन में कोई स्टाफ फ्रेंड होगा तो उनसे मीटिंग करवाएगा। वो मीटिंग कितनी इम्पैक्टफुल होती है, फिर आपको सेल करना आना चाहिए अपना आपको, मतलब आपका नॉलेज। सेल मतलब आपका टेक्निकल नॉलेज। जब तक आप टेक्निकल नॉलेज नहीं देंगे तो आप उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। The administration of network contribution, identifying dispute settlement, development training, development maintenance, appointment of technicals, development software, resource sharing arrangements. Big question, why people do not join the network? सबसे बड़ा क्वेश्चन है बॉस कि लोग नेटवर्क को क्यों ज्वाइन नहीं करते। उनको सबसे ज्यादा डर होता है कि उनका नाम चला जाएगा, राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन होती है, 100 रुपए की जगह उनकी 1000 रुपए की एक्सपेक्टेशन होती है, ट्रस्ट का इशू होता है कि मैं इस पर विश्वास करूं या ना करूं, fear to lose the own identity, fear to lose the client, fish sharing disputes, independence issues. Network are affected by other externalities such as the regulation, economic condition, technology, professional accountability and liability, lack of clarity and code of conduct, inequality among the members terms in terms of branding, focus on immediate benefit from network. अब जैसे नेटवर्क का क्या रहेगा कि आप लोगों ने सुना तो कल ही नेटवर्क कर लें। नेटवर्क के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, सही मॉडल चूज करना पड़ता है, सही नेटवर्क चूज करना पड़ता है। आपको एकदम इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, कोड ऑफ कंडक्ट सब चीजें रहती है। तो इस चक्कर में आदमी ज्वाइन नहीं करता। कंपटीशन का भी जमाना, इश्यूज विद पर्सनल प्रैक्टिस। अब आप सिंगल प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है और आपको नेटवर्किंग में नहीं गए तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, आपके इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड है आप लोगों के, लेस फिश इश्यूज, फीस का इशू है, डिपेंडेंसी ऑन फ्यू क्लाइंट है, वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी आपका वीक है, लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी। आपका क्वालिटी जो आपका SOP होता है आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे आप लोग। लिमिटेड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, AI का जमाना आ गया है, हर चीज AI के अंदर आपको मिलती है, तो आप AI लिमिटेड प्रैक्टिस में आप कैसे यूज करोगे। बड़ी फर्म होगी, आज सपोज बड़ी 5-5 करोड़ रुपए का जिनका टर्नओवर है फर्म का, जिनके रेवेन्यू रिसिप्ट है, वहां पे 25 लाख से 50 लाख तो AI पे खर्च कर दिया है कि AI से ही उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आपको बड़ा बनने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। और आपको AI, अपन प्रोप्राइटर, एज ए प्रोप्राइटर आप चैट GPT यूज कर लोगे, बट आप हर टूल तो यूज नहीं कर सकते ना जो AI में आते हैं। तो आपके पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाता है। नीड ऑफ ए नेटवर्क, नीड एन आर्किया टू ग्रो बिगर बेटर, टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ फिजिकल बाउंड्री स्मॉल साइज, टू एम्पावर द ब्रांडिंग बिजनेस डेवलपमेंट, टू शेयर एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस कॉपरेशन, टू कन्वर्ट द कंपटीशन इनटू सिनर्जी। अगर आपका नेटवर्क की जरूरत होती है तो हिडन अपॉर्चुनिटीज बाहर आती है, इंक्रीज द बिजनेस हॉरिजन, स्पेशलाइजेशन, फ्यूचर रेडी हो जाता है, वे आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अब वाई बिग फोर आर सो सक्सेसफुल, जो हम बात करते हैं PwC, KPMG, मैं इनकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों इतना ब्रांडिंग इनका क्यों इम्पैक्टफुल है, क्योंकि इनके पास पावरफुल ब्रांडिंग है। जो हम ब्रांडिंग पे बात कर रहे हैं, हमारा ब्रांडिंग हमारे हाथ में, कि भाई विजेंद्र जैन कौन है, क्या करता है बंदा, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसकी फर्म स्ट्रेंथ है, क्या इसका नेटवर्क है। तो आपको आपका ब्रांड बनाना है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो, आपके पास पोर्टफोलियो काफी आपका डाइवर्सिफाइड हो सकता है। रोबस्ट डाइवर्सिफाइड इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल प्रोफेशनल नेटवर्क, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये लोग इतना खर्चा करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। एम्प्लॉयज स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एम्प्लॉय को रिटेन कर लेते हैं लोग, टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास। और स्पेशलाइज ड्यू टू रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, हम लोग एक बार ITR फाइल करते हैं, फिर हम खुद ही बैठ के GST फाइल करते हैं, फिर हम उसका PT फाइल करते हैं, फिर हम उसका PF फाइल करते हैं, स्टेटरी ऑडिट भी हम करते हैं।
अकाउंटिंग भी इधर वे हम इन अदर वे हम ही करते हैं, कंसल्टेंसी भी हम ही करते हैं, लोन भी हम ही करते हैं। तो आपकी एक्सपर्टाइज कैसे हो? तो आपको शेयर केयर एंड एंजॉय, आपको काम को बांटना पड़ेगा। अगर आप आपका काम बांटोगे तो सामने वाला आपके साथ काम बांटेगा। आपको काम शेयर करना आना चाहिए। विजन टू ग्रो बिगर एंड बेटर, अगर आपको बड़ा बनना है तो कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्वालिटी, कैपेबिलिटी टू डिलीवर एज पर द क्लाइंट नीड, क्विक लर्निंग, ओपननेस टू फीडबैक, एक्सपर्टाइज along with the entrepreneurship, open minded towards the knowing, understand the new, willingness to do more routine things, flexible approach, contribution financial to non-financial towards the network, patience along with the perseverance and trust. How to stay ahead of this journey? Solution क्या है? Find the right partner, आप right partner ढूंढिए, work with the clear expectation, scale up while preserving your own identity independence without losing the client, get global from regional, optimize the specialization, push your growth through competition synergy, decide which model suits. मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल और नेटवर्क मॉडल। मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को जाइए, एसएसपी पोर्टल पे आप नेटवर्क का डोमेन है लेफ्ट साइड में, आप उसको गो थ्रू करिए। और नेटवर्क मॉडल हमारे ऊपर है, हमें किस काम तरीके से काम करना है, क्या काम करना है। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बिफोर यू मूव फर्दर। बी क्लियर विथ योर ऑब्जेक्टिव, एम एंड पर्पस, क्यों कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, क्या आपका विजन है। चेक द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, क्या कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर इन्वॉल्व है। नो योर पार्टनर्स नेटवर्क मेंबर्स, किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, कौन नेटवर्क मेंबर रहेगा। अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिलीवरेबल एंड फाइनेंशियल ऑल कंडीशंस, कि क्या पैसा रहेगा, क्या रेमुनरेशन रहेगा, कैसे रहेगा। जैसे अभी टीडीएस आ गया है, 194T आ गया। अगर आपकी 1 लाख रुपए की फीस है, 1 लाख रुपए आपकी फॉर्म में लोगे तो 90,000 रुपए आएंगे। अब 90,000 रुपए के बाद आप सामने वाले को पे करोगे तो उस पर भी आपको 50,000 रुपए के ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा 194T के अंदर। तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए टीडीएस तो मेरा एक्सपेंस है, मैं तो और फीस लूंगा। तो आपको हर चीज में कंडीशन, टर्म्स कंडीशन, सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। अगर नेटवर्क बढ़िया है तो हम पीछे वाले रहेंगे। और अगर सामने वाला क्या कर रहा है, हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म है हमारी, बीच में मिड साइज फर्म है और इधर बड़ी फर्म है। तो बड़ी फर्म क्या करती है सर, जैसे बिग फोर की हम बात करें तो वो एक्सिस बैंक का ऑल ओवर वैल्यूएशन का काम लेके आती है। तो एक्सिस बैंक का पर ब्रांच जो विजिट रहता है एक दिन का, उसका एसेट टैगिंग का, तो उसका 20,000 से 25,000 रुपए तक की फीस रहती है। तो 20 से 25,000 की फीस को वो सीधा बल्क में, उनकी जो ट्रस्ट वर्दी फॉर्म होती है नेटवर्क वाली फॉर्म, सीधा वो 17,000 रुपए में, 15,000 रुपए में, 12,500 रुपए में आउटसोर्स कर देती है। 12,500 रुपए वाला क्या करता है, वो खुद काम करता है क्या? नहीं करता। 12,500 रुपए वाला जो उसका फैमिली फ्रेंड होता है उस लोकेशन पे, लुधियाना जालंधर कहीं भी है, तो उसको आउटसोर्स कर देगा वो। और लुधियाना जालंधर वाला किसी लोकल फर्म से 750 रुपए, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए में वो उसको काम करवा लेता है। आप सोचो, 1,250 रुपए का मैंडे और 25,000 रुपए की बिलिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द नेटवर्क। तो हम कहाँ खड़े हैं, कौन हमको यूज कर रहा है, आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है। और अगर हमारा नेटवर्क अच्छा हो जाता है तो लोग हमको ऐसे फॉलो करते हैं, हमारे पास सब चीज है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। कुछ नेटवर्किंग कोड से हमारे, ठीक है, अगर नेटवर्क अच्छा हो जाता है तो हमको एकदम पॉजिटिविटी आती है कि हम कोई भी काम ले सकते हैं, कोई भी काम को हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमारा एकदम मोटिवेशन हमको आता है। कुछ कोड से हमारे, फिर क्लाइंट रिटेंशन एंड टीम। जैसे कि टॉपिक में क्या होता है कि नेटवर्क तो आपका अच्छा है, अगर आपके पास ऑफिस में स्टाफ ही नहीं है, अगर आपके पास स्टाफ काम करने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म काम करने वाला नहीं है, जैसे हम क्या करते हैं, 5,000 10,000 रुपए का स्टाफ रखते हैं, 15,000 रुपए का बीकॉम का बंदा रखते हैं। वो शुरू में साल भर सब हमसे सीखता है, फिर अगले साल भी सीखता है हमसे, 2 साल 1.5 साल होता है उसको, इनकम टैक्स का जुलाई का अगस्त का ड्यू डेट आता है उसको, वो बोलता है, सर आपसे बात करनी है। और वो हमसे आके बोलता है, सर मुझे छोड़ना है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसको अगर हमें लगता है कि ये बंदा काम का है और हमारे काम आएगा और हमारी फॉर्म संभाल सकता है, उससे हम क्लियर बात कर सकते हैं, तो हम उससे डेफिनेटली बात कर सकते हैं। तो रिटेंशन ऑफ क्लाइंट एंड टीम, मेरा ऐसा मानना है कि क्लाइंट को रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियली नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीलेश भाई क्या कहना है आपका, क्या मतलब अभी तक अगर हम इस पर कन्वर्सेशन डिस्कस करें तो इफ यू आर देयर
तो इफ यू अनम्यूट योर सेल्फ, कि आपको क्या समझ में आया, मतलब आर यू विथ मी, सेम लाइन, कि नेटवर्किंग, हमने इतने एग्जांपल्स पे बात करी लाइवली, इफ यू अनम्यूट योर सेल्फ, कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या कहना है आपका? आर यू विथ मी? सो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, क्या करना है, हाउ टू रिटेन द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करना है, हमने इस पे भी बात करी, कि क्योंकि क्लाइंट को रिटेन करना, जैसे ए कैटेगरी का क्लाइंट है तो वो तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपका ए कैटेगरी का क्लाइंट है, आपको अच्छी फीस पे कर रहा है और वो क्लाइंट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्किंग मजबूत नहीं है, आपके पास काम करने वाली टीम नहीं है, या आपको सब्जेक्ट नॉलेज पे बात नहीं। क्यों नितिन भाई, आर यू विथ मी? इफ यू आर एग्री विथ मी, इफ यू अनम्यूट योर सेल्फ, आप तो हमारे सीनियर सिकासा मेंबर हो। Sir, 100%. Today is a era of networking basically, and you are saying absolutely right, sir. Do agree 100% with you, sir. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है नितिन भाई? फीस का इशू आता है। हम लोग क्या होता है, जैसे अभी आप हो, आप और हम शेयरिंग क्यों नहीं कर सकते? अगर मैंने थोड़ा सा आपसे अच्छे से बात करी, तो आपने बोला कि विजू भाई ठीक है, काम तो दे दूंगा मैं, बट एक इंटरनल एग्रीमेंट होना चाहिए कि विजू की नितिन भाई, आपका ये बाटा का काम है बॉम्बे का, मैं कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाटा के कस्टमर से मैं मिल लूंगा, मैं आपको एमओयू साइन करता हूँ मेल पे पर्सनली 500 रुपए के स्टैंप पे, कि बाटा वाले का काम कभी भी लाइफ में मेरी फर्म नहीं करेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो बाटा वाला मुझे कम पैसे में भी काम देगा तो भी मैं काम नहीं करूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और कभी आपको पता चल जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली नितिन भाई कि विज्जू ने बाटा का काम लिया है, तो आप मुझे 100% कंपनसेशन फाइल कर सकते हो। मैंने अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया और मैंने पेपर पे साइन करने को मैं तैयार हो गया, तो आई थिंक हम सीए भाई इससे नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं। हमको डर सिर्फ इतना ही है कि अगर मैंने ज्यादा अच्छे से बात करी, मुझे क्लाइंट से कांटेक्ट करवा दिया और मैं वहां चला गया, तो सामने वाले सीए भाई का हमारा काम चला जाएगा। तो हमको इस चीजों में पहले कम्युनिकेशन ब्लंट करना है, कि मुझे मेरी लाइन बड़ी करनी, की बॉस मुझे आप पे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरे से आपका उधर का राजस्थान का काम बॉम्बे में करवा रहे हो, जितना आप बोलोगे मैं उससे इतना ही करूंगा। दिवाली की राम राम भी मुझे उसको नहीं करनी है, मेरे को उसको न्यू ईयर का विश भी नहीं करना है मुझे। क्लाइंट अगर मुझे कोई काम बोलेगी सर 15 CFC भी आप ही कर दो, नितिन जी से क्यों करवाओगे, तो मुझे बोलना है कि नहीं, मैं उनका एसोसिएट पार्टनर हूँ, आप नितिन जी से बात करिए। मेरे जी ने जो स्कोप ऑफ वर्क दिया है, जो मेरी ड्यूटीज है, जो मैं काम करने वाला हूं, मैं इतना ही काम करूंगा, तो आई थिंक सर नेटवर्क हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो वहां सबसे बड़ा इश्यू होता है कम्युनिकेशन। हम प्रॉपर तरीके से लोगों से, अपने सीए भाई से, एसोसिएट में बात नहीं करते। दूसरा लीडरशिप, इस बात को करने के लिए ब्लंट डिस्कशन बहुत जरूरी है कि बॉस, क्योंकि मीठी मीठी बातें करने से सर घर नहीं चलता, मीठी मीठी बातें करने से फर्म नहीं चलती, पैसा चाहिए सर। आज के कोविड के बाद बहुत महंगाई हो गई है, हम सब सीए भाई अपने एफडी का, अपने मार्केट का, अपना सेविंग का जो पैसा है, उससे हम फर्म रिवाइव कर रहे हैं, फर्म चला रहे हैं, स्टाफ की सैलरी पे कर रहे हैं, और कितना अच्छा रेवेन्यू नहीं है। तो अगर हमको बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपने क्लाइंट जो हमने छोड़े हैं, अगर वो क्लाइंट बड़े हुए हैं तो उनको जाके मिलना पड़ेगा कि बॉस हम आपको सेम सर्विस देंगे, बट हमें किसी भी सीए भाई का फीस का काम, कम फीस, अगर वो ज्यादा फीस में काम करे उससे कम फीस में काम नहीं लेना। ये हमें यूनिटी की जरूरत है, हर चीज फॉर्मल नहीं होती है। हम सब लीडरशिप में हर चीज, अगर इंस्टीट्यूट जैसे मिनिमम फीस का गाइडलाइन लेके आ जाती है, आप लोग बोलते हो लेके आना चाहिए, तो जो गांव में है, जो मोफिफिल जगह में हमारे इंडिया में छोटे सीए भाई है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ये मिनिमम फीस को रिकमेंडरी करा हुआ है, मिनिमम मिनिमम फीस को हम कंपलसरी नहीं कर सकते। अगर हमने मिनिमम फीस को कंपलसरी कर दिया, तो जितने भी देश में, भारत में हमारे सीए भाई छोटी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे गांव में, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा नेटवर्क जरूरी है, हमारे रिलेशंस जरूरी है, हमारा पेपर वर्क जरूरी है, हमें टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, टेक्निकल स्किल्स जरूरी है, उसके बारे में कहाँ क्या बात करनी है वो जरूरी है। फीस पे हमने बात करी, नेटवर्क क्यों जरूरी है हमने, देखो नितिन भाई, ये फिजिकल होता ना तो मैं 5 घंटे भी इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या, इट्स रिक्वायर्ड द टू वे कम्युनिकेशन। 5 घंटे भी मैंने सेशन पे लिया हुआ, और मेंबर्स आर अप्रिशिएटिंग दिस, ओके, वी आर टॉकिंग द लाइव एग्जांपल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क क्यों जरूरी है, प्रैक्टिस में क्यों जरूरी है, नौकरी में क्यों जरूरी है, बिजनेस में क्यों जरूरी है, और रिटेन क्लाइंट को रिटेन करना क्यों जरूरी है। फीस के इश्यूज पे फोकस ऑन ब्रांडिंग, हमने ब्रांडिंग पे भी बात करा कि हमारा ब्रांड होना बहुत जरूरी है।
अगर हमारा ऑफिस का कलर भी हम नहीं करवा रहे, ऑफिस में हमारा स्टेशनरी भी बराबर नहीं है, ऑफिस में हमारा ड्रेस कोड भी बराबर नहीं है, तो सामने वाले का ऑरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको काम करने में। वो सब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे से आदमी बड़ा बनता है। अगर आप ड्रेस कोड ढंग से पहन के जाओगे डिपार्टमेंट में, तो आपको साफ समझेंगे। चाहे आप बहुत बड़े साहब हो और ऑफिसर का ट्रांसफर चेंज हो गया, तो आपको पहचानेगा ही नहीं आप कौन से साहब हो। बट आप कोट पैंट में जाओगे, आप कोटी में जाओगे, आपका ड्रेस कोड अच्छा रहेगा, तो वो आपसे पूछेगा एक बार कि बॉस आप किस डेजिग्नेशन से आए हो, आप कहाँ से आए हो, कौन से ऑफिस से आप। मैं आज बताता हूँ, मैं आज एचडीएफसी बैंक गया था, मेरा एक प्रीपेमेंट करने गया था। लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मैंने 1 घंटे पेशेंटली मैंने वेट किया, वहां पे स्टाफ नया आया था। मैंने 1 घंटे बाद बोला, सर 1 घंटा हो गया, आप कस्टमर को ऐसे सर्विस दोगे क्या? आई एम द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट और हमने एचडीएफसी का ऑडिट किया हुआ है। जब हमने कम्युनिकेट किया ना कि हम भी एचडीएफसी से जुड़े हुए हैं, उसने इमीडिएट 5 मिनट में अपॉइंटमेंट लेके उसको क्लोज कर दिया। अगर आप बैठे रहोगे, आप बताओगे नहीं कि मैं ये हूं, तो सामने वाला आपको जज नहीं करेगा। तो आपको खुद को बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या कैपेसिटी है, आपका क्या ओरा है, आपको क्या काम आता है। जैसे आप दुबई का आप बोलोगे कि अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं बोलता हूँ अब अपॉर्चुनिटी है। दुबई में ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड वॉर की वजह से 40% डाउन हो गया है रियल एस्टेट सब कुछ। अगर आपको दुबई में सेट होना है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है, तो आपको अभी बेरिन ट्रेवल करना चाहिए इंटरनल ऑडिट के लिए, सिंगापुर आपको ऑडिट के लिए ट्रेवल करना चाहिए, और बेरिन आपको कंप्लाइंस के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए आपको ट्रेवल करना चाहिए। अगर आप दुबई में, अगर आपका नेटवर्क है तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको दुबई में सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए। 20 से 25 लाख रुपए अगर आपके पास साल भर में दुबई में खर्च करने के लिए है, और आपका दुबई में नेटवर्क है, मैं आपको बोलता हूँ आप 2.5 करोड़ रुपए की प्रैक्टिस 1 साल में कर सकते हैं वहां पे। आई बेट ऑन दिस। दो कंडीशन, आपका फाइनेंशियल, आपका फंड फ्लो पहले, आपका कैश फ्लो, कि आपके पास इतना कैश फ्लो हो और इतना आपके पास टाइम हो। तो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हम लोग को कोई पूछता कि विजय जी आप काम करते हो क्या? यस, हम सब काम करते हैं। सब्जेक्ट टू पैसा मिलनी चाहिए, सब्जेक्ट टू फीस मिलनी चाहिए, सब्जेक्ट टू फीस भी अच्छी मिलनी चाहिए। अगर अच्छी फीस नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है। अच्छी फीस मिलेगी तो इतने सीए भाई हमारे हैं, हम कहीं से भी काम करवा लेंगे। तो हमें अपना ओरा क्रिएट करना पड़ेगा। फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। नाफरा के बाद बॉस, नाफरा आपको आया नहीं आया, आप बचे हुए हो, भगवान करे आपको बचा के रखे नाफरा का नोटिस। बट कभी भी किसी भी टाइम पे अगर आपको आज नाफरा का नोटिस आता है या लिटिगेशन का नोटिस आता है, कुछ भी आता है, तो आपका डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो मैंने जब आज से 10 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, 15 साल पहले, तो मैं हरि भक्ति में काम किया हुआ है, तो मैं हरि भक्ति स्टाइल में काम करता हुआ। मेरे पास क्लाइंट चाहे छोटा था, बट मेरा विजन था कि मैं हरि भक्ति हूँ, मैं टिया चड्डा इन कंपनी से हूँ, तो मुझे बड़ा सोचूंगा तो ही मैं बड़ा कर पाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके 3,000 रुपए की फीस हो, चाहे आपके 30,000 रुपए की फीस हो, चाहे आपकी टैक्स रेट की 3 लाख रुपए की फीस हो, बट आपका फॉर्म 3CA 3CD का डॉक्यूमेंटेशन है, तो लगेगा। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है, तो लगेगा। अगर एमआरएल नहीं है तो आपकी कौन वैल्यू करेगा? एमआरएल तो आपके पास होना ही चाहिए, कि पीयर रिव्यू के अंदर भी कंपलसरी हो गया। चेकलिस्ट वगैरह इंफ्रा भी बराबर होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द 2020 कोविड, all chartered accountants should focus on capital market, AI, and many more new technologies which has come by the initiative by the ICI. पोस्ट क्वालिफिकेशन कैपिटल मार्केट का कोर्स है, आप उस पर कर सकते हो। एआई में आप कर सकते हो, लेवल 1 2 तो आ चुका है, 3 अंडर प्रोसेस है, चैट जीपीटी है। तो कैपिटल मार्केट सीए से बेस्ट कोई जज नहीं कर सकता, जैसे निर्भीक भाई है। मतलब आपको जितनी फाइनेंशियल की समझ है, सीए से बेस्ट समझ किसी को नहीं होती है। So with this, I think we are on time. We are on 5:30, and we complete this session in very crisp format by the 1.5 hour. Networking, fees issues, and documentation, and many more questions. Any questions if you can ask. Over to the Nilesh Bang bhai. Over to moderator for take it forward. Any questions? नीरज भाई कोई क्वेश्चन हो तो सही क्वेश्चन चैट बॉक्स में था तो हो गया आई थिंक करना। जस्ट अ मिनट। हाँ
Thank you. Thank you so much, sir. Respected sir. Your session was really insightful. Now, I would like to invite CA Nirbhik Gandhi, sir, for further. Thank you, Nilesh bhai. Thank you so much. Very respected our beloved chairman, very energetic chairman Ankur Goyal sir, our Sikasa chairman Nitin Gupta ji, and भोपाल ब्रांच के हमारे चेयरमैन आदित्य श्रीवास्तव जी. लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज के हमारे इस सेमिनार के सिरमौर विजेंद्र भाई फ्रॉम WRC स्पीकर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आज बताया कि किस प्रकार से हम इस नेटवर्क को हमारी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इतने शॉर्ट टाइम में आपने जो सर टॉपिक कवर किया, आई थिंक आपने MF भी कवर कर लिया, तो पार्टिसिपेट भी कवर कर लिया, नेटवर्किंग भी कंप्लीट कर लिया, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए. और ये सारे हम सभी मेंबर्स के लिए काफ़ी यूजफुल से हम डेली हमें प्रैक्टिस में को यूज़ करते ही है. और कहीं ना कहीं इनमें हमारी समस्या आती है, तो आज हमें एक सोल्यूशन मिल गया है. कभी जब भी कभी इनकी प्रैक्टिकल कोई इशू आए तो नो डाउट हम विजन भाई को कनेक्ट कर सकते हैं. सो अगेन थैंक यू विजन भाई. साथ ही एक बात सर, जो आपने लास्ट में कहा कि जो हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, वेल्थ एडवाइजरी की बात करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, मेरे ख्याल से इसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर कोई नहीं कर सकता. बिकॉज जिस फंडामेंटल एनालिसिस की जो रिसर्च वाले बात करते हैं, उस फंडामेंटल एनालिसिस को हमने पैदा किया है, उन फाइनेंशियल्स को हमने पैदा किया है. हमने जनरल एंट्री बनाना सीखा है, वहां से हमने लेजर्स बनाए, वहां से हमने फाइनल हमारी पोस्टिंग हुई, वहां से हमारा सिग्नेचर हुआ, और उसके बाद वही हमारे डॉक्यूमेंट जो हमने बनाए हैं वो राइट सभी तक गए हैं. तो आई थिंक जितनी फाइनेंशियल्स की हमें अंडरस्टैंडिंग है, जितने फिगर्स को हम जानते हैं, हमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता. तो ये एक हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो विजन पर डिस्कस कर रहे थे. सो मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी को कि आपने CRC के इस प्रोग्राम में भाग लिया. और साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल हमारा एक और वेबिनार रहेगा, जो रहेगा संवाद से समाधान. हमारे मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को किसी भी तरह कोई भी समस्या आ रही हो तो अपनी बात इस वेबिनार बिग भाई, तक बिग भाई पहुंचाएं. चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे जो सिकासा चेयरमैन नितिन भाई भी हैं, मैं चाहता हूँ वो भी हम लोगों को एनलाइटन करें, और उसके बाद फिर मैं उस पे आऊंगा क्लोजर पे. यस यस यस, सोच रहे हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू. और टू यू नीलेश भाई. नीलेश, आवाज आ रही है नीलेश भाई? सो आई थिंक नीलेश इज नॉट लिसनिंग है. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सिका चेयरमैन नितिन गुप्ता सर से कि आप आए सर, अपने उद्यम दो. और लास्ट में मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अंकुर गोयल सर, चेयरमैन सर को, कि आने वाले जो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताए. नितिन सर. Thank you so much, Nirvik bhai, for inviting me here. For vote of thanks. And Nirvik bhai is a very dynamic secretary of our CIRC and doing very well. Nirvik ji from Bhilwara. Friends, today's topic was the power of networking, and today era is of networking and aggregation of firms. आज हमारे बीच विजेंद्र जैन जी ने, जो कि हमारे WIRC के रीजनल काउंसिल मेंबर भी हैं, उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली से और एक डिटेल्ड वे में हमें बताया कि हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर नेटवर्क इनटू अ नेटवर्क. So thank you very much, Vijender Bhai, for sparing a time for us and giving your valuable inputs to all of us. Thanks to we were with us Gyanchand Mishra ji, our guest of honor, who has spared a time for us. We are thankful to him. We are thankful to our dynamic leader, C. Ankur Goyal ji, under whose leadership CIRC is doing a great, trying to do a best program for members and students. Thank you, Ankur bhai. Thanks to Aditya Shrivastava ji, today's Bhopal branch chairman, who for his welcome speech and his opening remarks. And of course, जो सबसे बड़ी बैकबोन होते हैं, moderator of a webinar. Thanks to Nilesh Bang ji for moderating a session.
and also thanks to again Nirbhik Gandhi ji from Bhilwara, Secretary of CIRC, जो नए नए इनिशिएटिव्स हमारे बीच में लेके आते हैं और ये नए नए प्रोग्राम्स को इन ए प्लान्ड एंड वेल मैनेज्ड वे में ऑर्गेनाइज कराते हैं. थैंक्स टू निर्भीक भाई एंड थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस विदाउट विच none of a program can be held. Thanks to all of you and thanks to each and everyone staff of CIRC. Over to again Nirbhik bhai. Thank you so much, Nitin sir. Over to you, Nirbhik sir. थैंक यू नीलेश सर. अंकुर सर, हमारे जो आने वाले प्रोग्राम जो इनिशिएटिव है जो मेंबर तक आप एक बार थोड़ा सा आपका म्यूट है सर, आपका म्यूट है. मैं एक ये भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जैसे हम लोग पहले भी लास्ट ईयर भी संवाद से समाधान कर रहे थे प्रोग्राम, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. और कल हम लोगों ने इसी सीरीज में एक वेबिनार तो नहीं कहेंगे, उसको डिस्कशन रखा है. हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा ब्रांचेस में इश्यूज हैं वो बताता हूँ हमारे मेंबर्स से, हमारे लीडर्स से, सब लोगों से कि सब लोग प्लीज उसमें ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के साथ ही साथ हम उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं जिसमें हम अपने मेंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. बाकी इसके डिटेल्स जो है वो फॉलो करेंगे बहुत जल्दी और वील सर्कुलेट द फ्लायर wherein all the details will be mentioned. The link to join the meeting also will be there. So we'll be circulating it very soon. Thank you so much, Nirbhik bhai. थैंक यू अंकुर जी. और साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि CIRC आपके लिए सभी के लिए मंथली एक न्यूज़लेटर पब्लिश करती है. सो आपके जो भी थॉट्स है, आप जिस बारे में सोचते हैं, लिखते हैं या आप विचार रखना चाहे किसी भी टॉपिक पर, तो हमारी मेल ID है CIRC@ICI.in पर अपने आर्टिकल साथ में भेज सकते हैं जिससे हम न्यूज़लेटर पब्लिश हो सकें. और इसके बाद 29 को एक और सेशन हमारा है वेबिनार जो रहेगा इमर्जिंग आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी इन US, UK एंड UAE मार्केट, जो काफी ट्रेंडिंग है. हमारे बीच हमारे एक स्पीकर मैम है अहमदाबाद से, वो जुड़ने वाले हैं. उसका भी शेयर हम जल्दी आपसे शेयर करेंगे डिटेल्स, तो आप वो भी ज्वाइन करें. तो हम कोशिश रहेगी कि हमारे जो मेंबर्स है जो छोटे एरिया में, रूरल में या जहाँ भी है, जहाँ तक आपके बड़े अच्छे स्पीकर नहीं पहुंच पाते, हमारी कोशिश रहेगी हर एक मेंबर तक पहुंचने की कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप तक हम पहुंचाए और आप जो टॉपिक्स चाहते हैं वो भी हम बताएं. सो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू. ओवर टू यू नीरज भाई. Thank you so much, Nirbhik sir. So can we conclude the session? Yeah, sure. Thank you, Vijay bhai. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, Vijender Thank sir, you. for such insightful thoughts. Thank you. Thank you everyone for joining us. Yeah, thank you.